posture also matters. Habits, your habits, personal habits, as well as the dietary habits, like if you want to, I mean, if anybody is having the alcohol, drug abuse, and the clothing and the footwear even. Okay, so the personal habits also. So the personal hygiene means what? पर्सनल हाइजीन में हम क्या कवर करते हैं? पर्सनल हाइजीन इज वन ऑफ द, just wait, where I have joined the class. Yes, this is the class. Okay, so the personal hygiene में हम क्या कवर करने वाले हैं कि पर्सनल हाइजीन में yes. So personal hygiene, it covers the different objectives like the cleanliness of the body and the apparel too, obviously, and the optimum health also, and the efficiency of body to work with. Okay, and the one's capability for the optimum performance. Okay, so summarize the role of the habits which you have already, because dietary habits, personal habits, physical habits, and other things which actually this chapter is a little bit easier, so you can actually go through hurriedly, so we can cover the different topics also. Okay, so the personal cleanliness in the first point is the keeping your body clean. How you want to clean your body? Like by taking bath and with the plenty of water, and the or you can actually dip the sponge bath, so that you can have you can just clean your body with the mild soap and water to remove the grease, perspiration, and the dirt too. Okay, so this one is the cleanliness, the main cleanliness method also. Okay, so otherwise you can use some sanitized soap also, sanitizers also, if you don't want to take a bath. But in India the weather is okay, so you can have a bath. In the winters you can have a warm water bath, and then in the summers you can have a normal water bath. Okay, so so depending upon your choice, this actually the choice. Okay, so in the morning usually we take bath, but in the foreign countries usually they take bath in the evenings and then they sleep. But in the India we have a different kind of options. So different kind of options, um, so in the different kind of options we should have to see that how we can clean ourselves. Now if we talk about our body, and now if we talk about our cleanliness of hands, feet, and the nails. Okay, so the disease germs can enter from the many numerous sources of our body. So the first of all are our limbs. Okay, so with what, with that the main part is the hands, because we have the nails also. And then if you don't clean, and then if you don't eat with the clean hands, before cleaning the hands, before washing the hands, okay, so then there would be the chances of the getting contaminated food, and that would be actually going into your stomach, and then it can lead to the harmful effects to your body, or the adverse effects. Sometimes you can have the gastrointestinal diseases, infections too. Okay, so you can admit the harmful bacteria or the viruses easily. They can actually get contaminated. Your food get contaminated with your hands, and sometimes with the food, with the feet also. And then you have to think about soap and water are the essential things for washing. Okay, and then you can actually use your footwears, and then you have to remove your footwears outside. Okay, so the nails should be, and extensions, obviously the extension of the nail should be cleaned, and the epidermis, outer layer of the skin. Okay, so you have to be very clearly you have to be very clear about the cleaning of the nails and all. So you have to be very careful about the dead tissues. Okay, and called the keratin, but it actually originates the cells, they are the much alive. Okay, so then nails should be kept short, so that the nothing should accumulate in between them. And then the, and then with the and then there should be the cleaning of the teeth also with the toothbrush. Okay, and cleaning of the nails, and cutting of the nails, and then may cause the surface become rigid and more split rigid na ho jaye nails, and the koi bhi surface also
So brittleness of the nails can be caused by the chemicals and the nail polish removers and the soaps and the detergents also. Okay, so all these things should be taken care of. Although this chapter is quite a bit easy, okay, so we can actually go hurriedly through that, because the cleaning and all, you people are grown up, so you can actually take care of cleaning of the mouth and the teeth also. Oral hygiene, you should be taken care of about your mouth. Obviously, the foul smell is primarily the cell decays. Obviously, whenever there would be the smell, and then you have to be very careful. Okay, so teeth and other things also. So there are good quality of the toothbrushes are available. Good quality of the pastes are also available. Toothpastes are also available. Good quality of the mouth wash also available. So that after the toothbrushing your teeth, and then you can have at least that gargle of that mouthwash. So you can environmental sanitation, if you talk about the and the safety could be, so we can actually see that the mouth with the saliva break down into the food and simpler components, and the teeth and tongue starts mechanical breakdown. That means whenever you take the food, and then it would be actually broken down by your teeth in the mouth, and the saliva is also helping the gulping of the your bite also. Okay, and the chime also, which you are known as disorder of the teeth, can interfere with proper chewing. Obviously, if your teeth are not healthy, your gums are infected or the inflamed, then there could be a different you find the difficulty in chewing of the food also. And there would be like little bit of the bad odor if you can feel, and then if there would be some kind of infection that could be actually mixed with your bite, and then it would be going to the stomach, and then it can actually lead to the much problematic things, okay, in the stomach also. And then you have to take care of the hair also. Obviously, cleaning sebaceous and cleaning the and taking care of the hair follicles and the sebaceous glands. Actually, they secrete the oil on the scalp, and then there would be the cleaning, because they release this oil on the scalp, and then there would be the more chances of the getting sticking chances of the sticking of the dust to that oil. So the texture of the hair different from the different individuals, obviously, and then the secretion of the oils from the sebaceous glands is also different in the different. The amount of the oil secreted from the sebaceous glands is a different one. Okay, so it also differs from the one part of another. It also areas maybe area to area. Okay, in some. And it depends upon the quality of the hair too. Okay, and some are properly cleaned if you are cleaning the properly hair and looks shiny and alive. Okay, so if you are having a dirty hair, then it would they would be looking little bit more you can say that dry and dirty. Okay, and dry too. And then so yes, so there are cleaning of the hair, and then there should be the cutting in some of the persons, and then you can cut the rough hair, and then they'll grow like anything. And in the males also, there should be the shaving of the facial hairs, but there should be a cleaning and washing of that also. Okay, so it should be taken care of. Okay, so taken care of the eyes and ears. So because the eyes and ears, they perform the two major functions. Okay, so the eyes are for vision, and the ears are for the listening. So they actually deal with the light and all. Sometimes the light would be very bright, and sometimes the light would be very dim. It should not be there, so you have to see under the optimum light. It should be not it should not be very bright, and it should be very dull, dim, sorry. So, and the tears provide the moisture to the lubricating movement of the eyeball. So it acts as a disinfectant to the eye. Okay, so tears contain the mild germicide called the enzyme, which is called the lysozyme. And if any bacteria enters into that, now the lysozyme actually can have the capability of killing that microorganism also. So all the infection and the injuries to the eye should be immediately attended if there is. Okay, so the infections, if the eyelids are stuck together because of the mucus secretion, wash and the boric acid lotion. Okay, so this would be used for the cleaning of the eyes and for the ear infections too. So the eyes, especially in the school children,
Okay, that should be regularly checked after 3 months, 4 months. Okay, so it should be clearly checked, because the students, they don't have the habit of the cleaning and all. Sometimes they touch the whenever they go to the for playing to the ground, and then they have the dirty hands. I don't know whether they can touch their hands at the numerous places, and then they touch their eyes. So there are much more chances of the students, of the children, to get the infections of the eyes and the ears too. More maximum the eyes. Okay, so it should be taken care of. Said that we have to make their habit, like first of all you should actually uh, wash the hair with a good soap and the sanitizer also, and then you should dry, only then you can touch your eyes. And वैसे भी ना eyes को करना ही नहीं चाहिए, ठीक है, touch करना ही नहीं चाहिए, because sometimes there are, you don't know whether the airborne. When I have washed my hands, but I'm sitting here on the table, I'm touching on the this thing, I'm touching all before. Actually we wash our hands before eating and all, but otherwise also we sit like this and we touch our face and nose and eyes also. So it becomes very difficult to save your eyes and with the clean hand and all. Okay, so but it should be taken care of maximally. So keep your surrounding areas also little bit sanitized. Okay, so sanitization and the safety also. So care of the external genitals, cleaning like of the sexual organs and the private parts also, in case of the males, and in case of the females also, it should be also taken care of. And you can wash with the good amount of good sanitized soaps. Okay, soaps, and sometimes the feminine washes these days, and the pH also matters. In case of the female specifically, you can use that, because it actually matters of the pH, where no organism, no other virus, bacteria can grow. So you can actually save your private organs also, because the females have the more chances of getting the UTI infections. Okay, so there are more chances of the getting the UTI infection as compared with the males. The females have the more chances. So you should have the more water to drink, and more urination should be there, and then there should be the cleanliness of the toilets, and all this also matters. Okay, where are the, whenever you go to the public places, or you are going to your working place, wherever that washrooms or the toilets, they have been used by the many of the persons. Okay, so there are so many females, so you don't know whether there might be some little bit delay in the cleaning of the washroom. So you can actually have, so there should also be, you can actually make sure that those are also cleaned, and the house also all should be cleaned. Okay, so the proper care of the genitals should be taken care of. मैडम हिंदी में Yes. Okay, so these are something very rest. Okay, so the rest and the sleep is also, now this was actually taking care of the personal hygiene. So it was like the cleaning of every part which is actually open. Okay, the body opened part, so you have to be very careful about that. So if you talk about the personal hygiene में एक और आ जाता है rest and the sleep also, because you are working but your body actually demands. Okay, so some whenever you are working, it depends upon the physical activity. If you are more doing more physical activity, your body requires more rest, and if you are doing less physical activity, and even more mental activities, like you are working on computer, and your जॉब डिमांड्स मोर ऑफ द मेंटल इन्वॉल्वमेंट. ओके, सो अगर आपकी मेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, सो देन इट शुड बी टेकन केयर ऑफ अबाउट योर स्लीपिंग आवर्स. सो उसका बहुत मैटर करता है कि वो भी आपका टेक केयर होना चाहिए. ठीक है, कि आप कितने घंटे सोते हैं. पर 6 घंटे तो मिनिमम है, 24 घंटे में से 6 घंटे तो मिनिमम है, बट विद एज इट शुड बी इंक्रीज्ड with age. Okay, so with age actually the physical activity gets a little bit slower, but then also you need the rest. Okay, because you have to give the rest to the heart and then to the blood system also, because whenever you are working whole of the time, and then you are in a stress and you are in a physical activity, so your breathing pattern would be very fast, and then there would be little bit pressure on the heart too. And
the blood system is also working fast. Okay, so this should be like and if you take the little bit rest and along with the sleep rest, the body rest also, but if you sleep little bit, okay, then so the amount of the sleep persons varies person to person and depends upon the physical activities also, and at the different amounts of the sleep at the different times. Okay, so the children, they need unbroken sleep, rather than the elderly, they actually take a nap for a little bit time and then they get awaken and then again they go for a sleep. Okay, so they don't have the good amount of the sleep for a longer hours. Even if they have time, then also they cannot just sleep. Okay, so young persons, the greater amount of the sleep it requires, lack of the land of sleep. Lack of the sleep can actually make any person or the young person who was working a lot, so that can make the ill health. Okay, so the infant older than 1 year can take 20 hours sleep, and between 2 years of the age, the child needs a 15 hours of the sleep. Obviously, whenever you grow, the lesser the age and you require more age. Okay, so the 1 year old child can actually sleep for the 20 hours. Okay, but and if the age increases, your sleeping hours would be lesser. Okay, but till the young age, you at least need 7 to 8 hours for the sleep. And sleep is the body's mechanism which actually combating the fatigue. It reduces the and eliminates the tension too. Okay, so it actually gives the rest whenever you were working as a mentally you were working, or your job requires the mental work, and as compared with the laborer too. Okay, prolonged stress on your body, on your mind, that gives the effect on the heart too. Okay, and after the sleep for some time, okay, moderate fatigue resulting from the exercise would vanish, and then you can actually find that the sleeps actually welcome करती है किसको, refreshment को, but strenuous exercise जो है shortly before the bedtime can interfere with the sleep. ठीक है, सो अल्कोहल एंड द स्लीपिंग पिल्स एंड द ट्रैंकुलाइजर्स वो होते हैं जब हम कोई भी ऐसी मेडिसिन जो हमारे दिमाग को शांत करती है, स्लीप स्लीप टेंशन को रिमूव करती है, तो उन्हें कंबाइनली हमें कॉमनली हम ट्रैंकुलाइजर का एक नाम देते हैं। ठीक है, एंड नेवर द राइट आंसर टू स्पीक। ऑब्वियसली ये नहीं है कि हम थक गए या नींद नहीं आती है तो हमें अब दवाइयों पे, स्लीपिंग पिल्स पे, ट्रैंकुलाइजर्स पे, या फिर अल्कोहल लेके समटाइम्स द पीपल दे गोइंग टू दे विश टू स्लीप। सो दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। लाइक कैफीन जो है वो भी आपको सोने नहीं देती है। सो स्टॉप हैविंग दैट मच ऑफ अ कॉफी, एंड sometimes even if you just work and then your body gets fatigued, and then you can actually it helps in this sleeping. Okay, so if you don't get the sleep, okay, you try to rest on the bed and then you don't have the sleep, that you're not able to sleep. Okay, your body doesn't allow, नींद आती नहीं है आपको, that condition is called the insomnia. Okay, so if it actually continues for a longer time, then you have to take the medical help or the doctor. Then you can have maybe some little bit tranquilizers or the sleeping pills for some time, as suggested by the doctor. Okay, it's not suggested because you should go for some natural method, so that you can actually sleep good. Okay, so the good physical conditioning of the body is also important with the exercise, and regarding the fatigue, to handle the fatigue, and the posture also, body's posture, because if you are fatigued you can like just lie leisurely. Okay, so because these exercises, any kind of the exercise which you are doing, that can actually lead to the heart health, lungs health, and the muscles too. Also the muscles, they also become healthy. So physical conditioning can be achieved by the little and no exercise equipment. Otherwise, also you can go for a walk, you can go for a jogging, you can go for a little bit yoga. That doesn't mean that you require some kind of the equipment only. Only then you can exercise. Okay, so without the specific equipments, there are so many exercises you can actually go for. Okay, and now the environmental sanitation and the safety. Okay,
So environmental sanitation like is required because our environment is we are actually aerobes. Okay, so we require the oxygen, and oxygen comes from the air. And if the air is dirty, so then you can have that oxygen as a goal of the training to achieve the steady state of the exercise, and which the breathing of the healthier than the normal. Okay, but obviously we really need the healthy air to breathe. Okay, so whenever there is a pollution, so there is a less amount of the oxygen present in the air, so it would be very difficult to have the good amount of the oxygen for breathing from the air. Okay, so jogging, running, rapid exercises of the examples of the aerobic exercises. Okay, and then they don't require some special equipment, but they need the comfortable shoes only, comfortable clothes also. Okay, so that you can actually maintain your health. Okay, so they cannot actually do not allow it to reach the level of the exceeds the normal ability of the lungs to supply the oxygen to the muscles. Okay, because whenever you are breathing, you are resting. Okay, so you require less amount of the oxygen, but whenever you are doing the jogging and exercising, or the strenuous exercises in the gyms also, or in the outside also, you are actually physically active, so your body and your muscles also, your limbs also, your legs and the muscles also, they require more amount of the oxygen. Okay, so they require the more amount of the oxygen so that it should reach the muscles also. And if the strenuous exercise, you are doing the strenuous exercise and the muscles are working, so they require a lot of oxygen amount. But if you cannot just provide the lot amount of the much amount of the oxygen, so there would be the anaerobic cycles, they can actually start occurring. Okay, they can utilize the glucose, and then that would be converted into the lactic acid. Okay, so the lactic acid, that's why whenever you start doing the exercises, now the muscle cramps you could actually feel in the lower limbs, and also because of the lack of the exercise, you are a lack of the exercise, and you are just start going to start just 1 or 2 days you actually starts doing the strenuous exercise, and lack of the oxygen to those muscles would lead to the formation of the lactic acid with the help of the LDH, and then there would be the accumulation of that lactic acid. So you feel the muscle cramps in your body. Okay, so but with if you're doing the regular exercises, so you would be actually feeling little bit good. Okay, so now what is fatigue actually? Blood supplies, and to understand the fatigue, you know that the blood supplies in our body the fuel and oxygen to the muscles, and carries the waste material back from the muscles, and then it would be excreted. Okay, so in case of the too long and the too strenuous activity, okay, whenever we are doing too long and strenuous exercises, the blood is unable to carry away the waste food enough. Okay, so that accumulates in the muscles and create the feeling of the tiredness. Okay, so fatigue affects the body adversely by reducing the quantity of and quality of the work. Okay, so fatigue actually, it's a accumulation of now you have understood that it's a accumulation of the waste products which could not be excreted by the blood, so our body actually gets fatigued because of the accumulation. Okay, so the muscle fatigue is actually defined as the stimulation of the muscle or the group of the muscle beyond their ability to recover, beyond their ability to recover, because whenever they are in a resting mode, and whenever there would be, and they are not usually doing the strenuous exercises, because we don't do, but sometimes we start and then we start with that strenuous exercise. You have to start the exercise from the limited amount of, okay, limited amount of the exercises. Okay, sometimes what we do, we have to start with the walk, and then fast brisk walking, and then for the jogging, and then for the other kind of the exercises. But what we do, we actually start with the whenever we wish to exercise, now we start with the jogging and then fast and the physical exercises also. So that leads to the accumulation of the your some food particles and other things also, the waste material into the body, because
blood is not working that fast, so that that can actually bring that waste material for the excretion also, the waste material that it can start accumulating over there. Moreover, the formation of the lactic acid also starts. Okay, so that would lead to the accumulation of the lactic acid into the muscle, so that you can feel the muscle cramps also, and your whole body gets fatigued. Okay, so that actually the fatigue is actually the adverse effect. Okay, sometimes the posture is also okay. Your body is made up of in a certain structure and the posture, so you have to be physically and maintain your anatomically parts of the body in its a physiological state. Okay, so posture is one of the definition, अगर आप इसकी देखनी है तो anatomical parts of the body को हमने किस में मेंटेन करना है, उन्हीं की फिजियोलॉजिकल स्टेट में. So it would lead to the mental and the emotional state of the individual. So success is an activity is evident in a straight back of the shoulders, head high होना चाहिए, स्मार्ट एंड द क्विक स्टेप्स ले सकें आप, आईज लुकिंग स्ट्रेट एट यू. फेलियर ऑन द अदर हैंड is reflecting the drooping shoulders, bent head, downcast eyes and the dragging steps. Okay, so these are the negative ones जो पहले मैंने बताया, they are the positive ones. They are actually the leading to the straight posture. Okay, good posture. एंजाइटी अगर होती है तो उससे भी शोल्डर्स पे आपके इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, एंड इनसिक्योरिटी कैन ऑल्सो हैंग आउट लिटिल बिट, एंड देन एम्बेरसमेंट ग्रोइंग द ब्रेस्ट एंड देन रिजल्ट्स इन द शोल्डर्स slump. ठीक है, certain kinds of the chronically poor posture may be an expression of some of the disorder to should be checked. These disorders could be checked अगर हो रहा है तो. फ्लैट फीट भी होते हैं कईयों के ना, बिल्कुल फ्लैट. तो नियर साइटेडनेस एंड astigmatism or hearing loss, a person who has a slow slouch and who actually holds shoulder either than maybe abnormal spinal curvature. Because अगर आपके पोस्चर से का ही ड्रूपिंग है, सो आपकी स्पाइन विद टाइम ना आपकी स्पाइन का स्ट्रक्चर वही होना शुरू हो जाता है, एंड देन आपकी स्पाइन का स्ट्रक्चर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो जाती है ना एक्चुअली जो स्पाइन होती है, तो उससे भी आपके ब्रेन तक भी सिस्टम नर्व्स होती है ना बीच में, स्पाइन के बीच में सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो जाती हैं तो नर्व्स न्यूरॉन्स होते हैं. सो इफ यू डोंट हैव द गुड पोस्चर ऑफ योर बॉडी, so that would start affecting your body finally. ठीक है, so these are the things which you have to be taken care of. Some habits if you talk about, so eating habits, healthy habit, nutritious foods. Okay, so every kind of a food you should have, you have to be very nutritious food, and at the time also proper timing should also be there. Okay, taking the alcoholic drink in moderation, so वो harm नहीं करते हैं, but taking too much and the regular basis that can actually harmful. And the in the same way in the smoking too, but the smoking to single time maybe, because the tobacco अगर आपको वो कि थोड़ा ले ले तो उससे भी नुकसान है. ठीक है, so the bowel habits are also, if you're eating good, so you would be having the good bowel movements, and you don't eat good and ऊट पटांग कुछ खाते हैं, मैदा खाते हैं, अगर आप जंक फूड खाते हैं तो you could face even the constipation problems. Okay, so environment and safety, all these things, and the drug abuse, alcohol or any kind of the drugs जिससे आपके विड्रॉल सिम्टम्स ना आए बॉडी पे. समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग वो लेते हैं CNS स्टिमुलेंट के बेसिस पे थोड़ा थोड़ा लेना शुरू कर देते हैं, बट हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब उसके आदी हो गए हैं. ठीक है, बहुत सारे हैं, ये शायद हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया था. हेलुसिनेशन भी होनी शुरू हो जाती है, सो यू बिकम डिपेंडेंट अपॉन दैट ऑल्सो. ठीक है, हमें क्लोथ्स की, फुटवेयर्स की ये बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इनकी क्लीनिंग की और अपने साइज के और जो मटेरियल सूट करता है आपकी स्किन को, इससे कोई दिक्कत ना आए. ठीक है, कोई एलर्जिक ना हो, कोई कपड़ा एलर्जिक ना हो, कोई शूज का मटेरियल लेदर कुछ एलर्जिक ना हो आपकी बॉडी, कोई कलर से एलर्जी ना हो आपको. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग, क्योंकि समटाइम्स क्या कलर एलर्जीज भी होती हैं, कोई टच से एलर्जी होती है, समटाइम्स कोई डाई से एलर्जी होती है कपड़ों को, समटाइम्स किसी स्पेशल काइंड ऑफ you can say that special kind of
लेदर हो गया या रेक्सिन हो गई या डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स हैं, कभी क्लोथ है, कोई डाई है, कोई हील्स हैं, जिससे पोस्चर पे फर्क पड़ता है। हो सकता है कोई वेज हील्स हैं या फीमेल के चक्कर में, है ना, फीमेल्स में की अगर हम बात करें तो इवन द मेल्स आर आल्सो दे शुड एक्चुअली बी टेकन केयर ऑफ। एंड अपने साइज के बराबर का ही शूज लेना, ना बड़ा लेना ना छोटा लेना, सो दैट यू कैन हैव दी योर जो फुट का जो पोस्चर है, फुट पोस्चर शुड नॉट बी डिस्टर्ब, बिकॉज अगर ज्यादा करेंगे और कम करेंगे तो ज्यादा बड़ा लेंगे और कम मतलब लेंगे, छोटा लेंगे तो उससे भी दिक्कत आने वाली है। ठीक है, जस्ट वेट। ठीक है, तो उससे भी दिक्कत आती है। आपने कभी भी साइज बड़ा और छोटा नहीं लेना है। महंगा शूज लेते हो कई बार ना लोग क्या करते हैं कि ले लिया है, छोटा भी हो गया, देन ऑल्सो स्टार्ट, बिकॉज द पोस्चर ऑफ योर फीट ना दैट इफेक्ट्स टू योर ब्रेन टू, योर होल बॉडी टू। ठीक है, बिकॉज आपको ऐसे रहना चाहिए, आपके फुट का जो पोस्चर है उसके अकॉर्डिंगली, एंड द शूज इन विच यू आर कंफर्टेबल एंड वियर द क्लोथ इन विच यू आर कंफर्टेबल and wear the cloth material also in which you are actually comfortable. Okay, so don't wear the clothes, shoes, even the material छोटी हैं बट दे मेक यू अनकंफर्टेबल ऑन द डे टू डे बेसिस। ओके, आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल क्रिएट करते हैं आपकी कंडीशन को, सो दैट आपकी फिर शाम को आके या पोस्चर या टांगे या मसल्स या न्यूरॉन्स जो हैं वो दिक्कत क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज एक्चुअली अबाउट योर से आई मीन पर्सनल हाइजीन। सो इसी तरह से पब्लिक एंड होम सेफ्टी का भी ख्याल रखना पड़ेगा। पब्लिक एंड होम सेफ्टी में हमारे मेजर पॉइंट्स क्या होते हैं कि अगर हम घर पे हैं तो सराउंडिंग्स और एक्सीडेंट्स, ऐसे घर में भी ऐसी चीजें ना हो, ठोकर ना हो, फर्श उल्टा अनइवन ना हो और स्लिपरी ना हो। इवन वॉशरूम से शुड नॉट बी स्लिपरी। इवन द बाहर का जो आपका जो स्पेस होती है या बैक साइड की बैक यार्ड में जो स्पेस होती है, दैट शुड आल्सो नॉट बी स्लिपरी। एंड प्रिकॉशंस हर तरह की वहां भी ली जानी चाहिए। कहीं भी कील नहीं होनी चाहिए घर में, टूटा नहीं होना चाहिए, दरवाजे का कुंडा नहीं निकला होना चाहिए। एंड बड़ी सारी चीजें हैं जो सेफ्टी का ख्याल रखना है। तो सेफ्टी अगर घर पे आपको ख्याल रखनी है तो जो एरिया होते हैं ना, हाई पोटेंशियल एक्सीडेंट्स होते हैं, जो डिजाइन है कंस्ट्रक्शन ऑफ दी हाउस, उसका बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि दरवाजा ठीक से है, पीछे से निकलना, आगे से निकलना है, कहाँ से वॉशरूम है, बेडरूम के साथ ही वॉशरूम है, ड्राइंग रूम के साथ वॉशरूम है। सो ये दिस यू हैव टू बी। बाथरूम जो है उनके जो बाथरूम के जो डोर फ्लोर्स हैं वो डर्टी ड्राई होने चाहिए। ठीक है, स्क्रब्ड होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, स्लिपरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़े दिनों बाद सोप से उसको क्लीन करवाइए, सो दैट द स्लिपरी नहीं होनी चाहिए। और किचन में क्या है, ग्लास स्टोव एंड सिलेंडर के बारे में आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। लाइटर को परे रखना पड़ेगा, बच्चों की रीच से दूर रखना पड़ेगा। अगर तो कैरोसिन स्टोव्स हैं, कैन्स हैं, केरोसिन के कैन्स हैं, उनको भी दूर रखना चाहिए, माचिस से दूर रखना। बच्चों का नहीं ना पता होता, बच्चों का क्या होगा कि कभी भी उठाया और कैन के पास जला दिया। तो इफ द केरोसिन इज देयर एंड जो आपकी माचिस की डिब्बी है अगर वो साथ में है एंड तो वो कभी भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, किचन में एक्चुअली आपको चीजें बड़ी दूर दूर रखनी ही होती हैं। तो प्रेशर कुकर्स के लिए भी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर आप उसके प्रेशर ठीक से है, पानी है, जब भी आप उसको कुकिंग के लिए बंद करते हैं तो आपको ठीक टाइम का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना प्रेशर हो जाए और आप ठीक नहीं रख रहे हैं तो दैट कैन एक्चुअली बर्स्ट ऑल्सो। सो हॉट ऑयल जो पैन्स होते हैं, ये नहीं कि डाल के वहीं छोड़े और बच्चा गया तो सारा का सारा उसके ऊपर गिर गया। इवन द बॉइलिंग मिल्क ऑल्सो। ठीक है, एंड लॉन्ग बड़ी बड़ी जो वेसल्स होते हैं जिसमें कुछ उबाल रहे हो, पानी उबाल रहे हो, दूध उबाल रहे हो, या फिर कोई सब्जी बन रही है, या फिर फ्राई कर रहे हैं, ऑयल है बीच में बहुत ही ज्यादा, सो दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। ओके, सो नाइव्स को भी साइड पे रखो, क्योंकि बच्चों का देखो जो काम कर रहा है ना वो तो सीरियस होते हैं, जो एडल्ट हैं वो तो सीरियस होते हैं, तो दे आर एक्चुअली, बट समटाइम्स दे कैन लीव देयर। छोटे बच्चे हैं तो वो उठा के आई मीन दे कैन लीड टू दी फेटल एक्सीडेंट्स ऑल्सो। सो इलेक्ट्रिक नाइव्स जो होते हैं ना, पर्टिकुलरली सिंथेटिक मटेरियल के क्लोथ वाले, या फिर देखो नाइव्स तो आपको लेने ही पड़ेंगे, बट उनकी सिर्फ जो इलेक्ट्रिक नाइव्स से बचा जा सकता है, क्योंकि वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, बैटरी ऑपरेटेड होते हैं तो बाहर नहीं रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे सिंथेटिक मेटल सिंथेटिक क्लोथिंग को भी अवॉइड करना चाहिए। यू शुड यूज दी कॉटन, क्योंकि सिंथेटिक वाले आग जल्दी पकड़ते हैं।
एंड स्टील किचन काउंटर जो है वो डेंजरस होता है इलेक्ट्रिकल। अब देखो ये सारी चीजें आपको ख्याल रखनी पड़ेगी। अगर तो किचन काउंटर जो है वो स्टील का है, उसके अपने इलेक्ट्रिक है, तो मेटल है वो कभी भी पकड़ लेगी, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी आते हैं, ठीक है। तो मेटल कभी जो मेटल है वो कभी भी आग पकड़ सकती है, ठीक है। करंट पकड़ लेगा ना एक्चुअली। तो फिर अगर आप उसको टच करते हैं तो ऑब्वियसली देयर कुड बी दी फेटल chances of the current passing through the body, okay. Open drawers and the cupboards, they should also be the chances उनकी properly intact होना बहुत जरूरी है। समटाइम्स वो हिल जाते हैं, गिरेंगे या कुछ भी, या नीचे से भी गिर के सामान बीच में से रख सकता है। तो आपको वो सब उनके इंटैक्ट रखने हैं कि इनके कुंडे सब ठीक है, ये बंद हो रहे हैं, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी, जो नीचे होते हैं शेल्फ के नीचे या ऊपर वाले भी होते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी टेकर। स्टेयर केसेस में बुजुर्गों का, बच्चों का बहुत ख्याल रखना है। उनको ड्राई रखना है, गीले नहीं होने चाहिए हैं, स्लिपरी नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात, ठीक है। स्टोरेज प्लेसेस में भी जहां आप लेडर्स टूल्स या ये सारी चीजें उठा के रख देते हैं ना, तो उनको लेके बच्चे ना कुछ निकाल के चढ़ें या बाहर निकाल लिया। सो दैट शुड बी ऑल्सो टेकन केयर ऑफ कि कौन सी चीजें आपको स्टोर में रखनी है, ओके। So elevators or the lifts, okay, lifts, they are becoming very common, especially in the apartment of the building। आजकल क्या है, छोटे छोटे बिल्डिंग्स है, चार चार पांच पांच माले, और दिल्ली बॉम्बे में तो आई मीन देयर आर मस्ट कॉमन यूसेज ऑफ द लिफ्ट्स आल्सो। सो बच्चों का अंदर जाना बाहर जाना, उनके डोर्स पे ख्याल रखना, इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज बच्चे तो सुनेंगे नहीं, इवन बड़ों के साथ भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। सो ये सारी आपको ध्यान रख के बच्चों को भी सिखाना, और हमेशा बच्चे साथ में ही जाएं, तो अदरवाइज लिफ्ट्स में भी बहुत डेंजरस एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। सो एक्टिविटीज विच आर पोटेंशियल फॉर एक्सीडेंट, सबसे पहले पार्किंग ऑफ द व्हीकल को ध्यान में रखिए, बच्चों के सामने नहीं है, जिस तरह से आपने पार्क किया, जिस डायरेक्शन में पार्क किया, ठीक है। बैकिंग ऑफ योर कार फ्रॉम द यार्ड, क्योंकि समटाइम बच्चा पीछे से भागता हुआ आ जाता है, बच्चों का या समटाइम्स कोई जानवर जैसे पेट्स होते हैं, जो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, सो इनका भी ख्याल रखना है, ठीक है। ड्राई फ्राइंग इन द किचन, डीप फ्राइंग इन द किचन, क्योंकि वहां भी एक्सीडेंट होने के चांसेस है, बिकॉज यू आर हैंडलिंग द लॉट ऑफ गुड अमाउंट ऑफ द ऑयल फॉर फ्राइंग, बिकॉज वो बॉयल हो रहा है। अगर वो थोड़ा भी स्पिल होता है या थोड़ा भी स्पिल होके छींटे भी पड़ते हैं, देन ऑल्सो दैट कुड बी that could injure you, whoever the person is actually playing with that, ठीक है। प्लेइंग विद द फायर क्रैकर्स ऑल्सो, दैट नीड नॉट टू बी टेल अबाउट। एवरी दिवाली पे कितनी सारी दिक्कत आती ही है लोगों को। कीपिंग द बेडरूम वार्म एंड इट इज कोल्ड, ओके, इट इज वेरी कोल्ड। अगर आपका बेडरूम है, जब आप सोने लगे हो, अगर तो वो बहुत कोल्ड है, देन यू हैव टू बी मेक श्योर दैट बाय यूजिंग एनी अप्लायंसेस या किसी भी तरह से उसको वार्म करना है, लेकिन उसको बंद नहीं चारों तरफ से करना। कई लोग गांव में क्या है कि चारकोल की अंगीठी जलाते हैं और बंद कर लेते हैं, तो देयर वुड बी एक्चुअली the burner, I mean there would be the carbon monoxide की जो poisonous बनती है, so that could lead to the fatal effects and many deaths हुई हैं, many deaths are reported by this accident। And then cleaning and handling of the firearms at home। So समटाइम्स जो ये लाइसेंस्ड होती हैं, लोगों के घरों में होती है ना लाइसेंस्ड वाली, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप लाइसेंस्ड वाली भी ले रहे हो, तो उसको लोडेड करके रखा है या यूसेज नहीं है किसी बच्चे ने, मतलब इस तरह की चीजें जैसे पुराने लोगों के पास भी शिकार के लिए होती थी, तो उन चीजों का भी ख्याल रखना। सो दीज आर दी एक्चुअली द टिप्स फॉर द सेफ्टी यूज्ड एट द होम्स। ये सब घरों में नहीं होता, बट जहां भी है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत सारे घरों में आजकल ड्रिलिंग मशीन्स हैं, इलेक्ट्रिक शेवर्स हैं, सोल्डरिंग करने के लिए आयरन्स हैं, जो हम इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस रखते हैं। सो दिस शुड आल्सो बी टेकन केयर ऑफ। एंड ऑलमोस्ट डेली कोर ऑफ आयरनिंग, सिंपल प्रेस, प्रेस से जो कपड़ों की प्रेस होती है ना, उससे भी बहुत एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज हम प्रेस की हमने और हमने ऐसे ही छोड़ दी थोड़ी देर, क्योंकि गर्म होती है, हम दूसरी जगह पे रखते नहीं है, तो बच्चा आया तो कोई उसने टच कर लिया, तो इट कुड एक्चुअली लीड टू दी फेटल accidents, okay। So flying kites on the roof, वो तो एक जनरल सा है कि बच्चे उड़ाते उड़ाते उनको पता नहीं है, and then they can fall down। So these should be taken care of। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज है बच्चों के लिए घरों में, ठीक है। प्रेशर कुकर्स का I've already told you। Consuming the alcoholic beverages in excess, ठीक है।
एंड एक्सेस में खुद के लिए भी दिक्कत है, और फिर अगर आप पी के घर से बाहर पी रहे हैं तो ड्राइव करके आते हैं तो लोगों के लिए भी दिक्कत है, आपके लिए भी है, और घर में भी अगर हैं देन यू कैन गेट फेंटेड ऑल्सो। एंड बच्चे देखते हैं आपको, मे बी समटाइम बच्चों की हैबिट्स भी हो जाएगी ऐसी, दे कैन ऑल्सो हैव, आपके घर में बॉटल पड़ी है, दे डोंट नो, they don't know actually, they can have it, okay, so all these things, so इनका रखना भी ध्यान पे और लेना भी ध्यान से, अमाउंट का ख्याल रखना है। और जब बच्चों को, छोटे बच्चों को नहलाना है, उनको एक फट्टा होता है आजकल, तो कई चीजें आती हैं, उसके ऊपर रख के नहलाइए, या फिर आपको नीचे वाली जगह पे, ये नहीं कि बहुत बड़े टब में जिसमें पानी बहुत भर जाए, बिकॉज बेबी इज सो small, so they can actually dip into that, and it could be actually lead to the uh, lack of the breathing, okay, why, when they get dip their mouth into the ठीक है, द प्रोसेस ऑफ द ईटिंग ऑल्सो। सो आपको ना एक जो ईटिंग का हैबिट्स है ना, वो आपकी होनी चाहिए कि बहुत ही स्ट्रेस फ्री होके बैठ के खाओ, एंड बाय दी वॉशिंग योर हैंड्स ऑल्सो, एंड खाने के बाद भी आपको करना, और बीच में फोन एंड ऑल ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, बात नहीं करें, सो दैट यू कैन आपका जो खाना है वो सीधा इसोफेगस डाइजेस्टिव ट्रैक में जाए, सो दैट रेस्पिरेटरी में भी फंस जाता है। और कोई कई बार ऐसा होता है कि कोई फोन ऐसा है, आप खाना खा रहे हैं, कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन, एंड देन यू हैव अ ब्रीदिंग पैटर्न डिफरेंट हो जाते हैं आपके, सो वो भी अंदर स्टक कर जाएगा। एंड समटाइम बच्चों का तो बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता है, ठीक है, तो इसको दे, अगर ऐसा कभी हो भी जाता है तो आपको एक पर्सन को पीछे से पकड़ना है, बंदे को खड़ा करना है, उसके उसको पेट को ऐसे दबाना है, रिब्स को दबाना है, सो द प्रेशर शुड बी, और उसके जर्क आएगा तो वो बाहर की तरफ चला जाएगा, ओके। सो ये सारी चीजें, एंड स्लीपिंग एंड भी प्रॉपरली आपको प्रॉपर प्लेस पे, प्रॉपर बेड पे लेनी चाहिए, और थोड़ा स्पेस हो, ऐसे नहीं कि रात को गिरे। और छोटे बच्चों का ख्याल, बड़े खैर तो नहीं करते हैं, छोटे बच्चों का खास ख्याल रखना चाहिए। एंड स्मोकिंग बेड में बिल्कुल भी नहीं, कई बार लोग लेट के अपने बेड में, अपने बेडरूम में भी दे स्टार्ट स्मोकिंग ऑल्सो, सो दैट शुड नॉट बी डन, दिस इज नॉट द गुड हैबिट, ओके। एंड अपने घर के इलेक्ट्रिक आइटम्स का ख्याल, प्लग्स का ख्याल, पावर प्लग्स का ख्याल, और मेडिसिन एंड केमिकल्स स्पेसिफिकली, समटाइम्स यू यूज इंसेक्टिसाइड्स एंड द पेस्टिसाइड्स ऑल्सो अपने प्लांट्स में, घरों में, बैक वाले किचन गार्डन के लिए भी रखे होते हैं, तो उनकी स्टोरेज, एंड ऑल्सो शार्प टूल्स एंड नाइव्स, ठीक है, फायर आर्म्स एंड द फायर क्रैकर्स, मोटर व्हीकल्स को कहाँ करना है, टेलीविजन सेट्स का भी, रिमोट्स को भी, ग्लू, इवन ग्लू, ग्लू को, गम को जो चिपकाने वाली होती है, अगर वो लिक्विड है दैट कैन ऑल्सो, बच्चे क्योंकि आईज में लगा लें, फिंगर से माउथ में गल्प कर लें तो आई लिड शट हो जाती हैं, बच्चों का ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बड़ों को तो फिर भी पता है, कभी एक्सीडेंट रेयरली बड़ों के साथ हो सकता है, बट यूजुअली बच्चों के साथ होता है। तो प्लास्टिक बैग्स एक कैरी करके एक साइड पे टांगिए, रोप्स एंड स्ट्रिंग्स ऑल्सो, बच्चों का कुछ नहीं पता, उनके साथ खेलेंगे, गिर जाएंगे, फंसा लेंगे, स्ट्रैंगुलेशन हो जाएगी गले में, आई मीन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स कुड बी, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी टेकन केयर ऑफ। सो पब्लिक सेफ्टी में रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए आपको एक तो प्रॉपरली ड्राइविंग प्रॉपरली कीजिए, ठीक है, एंड समटाइम्स एनिमल्स ऑन रोड्स हैं, बुलेट कार्स हैं, बाइसाइकिल्स हैं, टू व्हीलर्स हैं, थ्री व्हीलर्स हैं, कार्स, बसेस, ट्रक्स, लॉरीज हैं, हैंड पुश्ड कार्ट्स हैं, पेडेस्ट्रियन भी चल रहे होते हैं, बच्चे भी हैं, साइकिल्स वाले भी हैं, ठीक है। सो ये सबकी जगह है, देखो शहरों में तो खैर एनिमल्स तो होंगे नहीं, वो गोट्स, डॉग्स एंड चिकन्स एंड बफेलोज, दे आर नॉट देयर, but sometimes if you go towards the some village parts, and then so you have to be very careful wherever you are actually driving, and or what kind of the vehicle you are driving, and if you are pedestrian then also you have to be very careful कि कहाँ पे हमने चलना है, कहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं, कौन सी साइकिल की लेन है, ठीक है। एंड poorly maintained vehicles should not be मतलब वो नहीं चलाने चाहिए, तो क्योंकि उनकी सर्विसिंग एंड ऑल, ब्रेक शुड बी ऑल्सो मेंटेन, ये नहीं है कि अब चल रहा है जी, आगे ब्रेक लगाने की जरूरत थी तो ब्रेक लगाई ही नहीं गई, ठीक है, तो वो सब प्रॉपरली मेंटेन करिए। ड्राइवर की पुअर एबिलिटीज, कभी फास्ट चला रहा, कभी स्लो चला रहा, ड्राइविंग सेंस शुड ऑल्सो बी, ओवरलोडिंग भी नहीं होनी चाहिए, ना ही ट्रक्स में या ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, पुअर रोड सरफेसेस भी नहीं होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट शुड एक्चुअली टेकन केयर ऑफ, एडिक्वेट लाइटिंग सिस्टम भी होना चाहिए, एंड स्पीड ब्रेकर्स भी होने चाहिए, ठीक है। अनक्रॉसिंग करने के लिए क्रॉसिंग के पास, लाइटिंग पे पास ट्रैफिक पुलिस भी होनी चाहिए, और ट्रैफिक लाइट्स भी होनी चाहिए।
इनएडिक्वेटली ट्रेन्ड अनइंटेलिजेंट ट्रैफिक पुलिस जो कमिटेड नहीं है टुवर्ड्स देयर सोसाइटी, दे कैन नॉट एक्चुअली टेकन केयर ऑफ द व्हीकल्स एंड द ट्रैफिक रूल्स एंड द रोड सेफ्टी, ठीक है, ऐसे लोगों को भी नहीं, सो दे शुड ऑल्सो टेकन केयर ऑफ अपनी ड्यूटीज का। स्पीड का ख्याल रखिए, एंड एज ऑफ द ड्राइवर ऑल्सो मैटर्स, नाइट ड्राइविंग आती है नहीं है, पी के ड्राइव नहीं करनी है, ठीक है। इसी तरह से प्रिवेंशन लेने के लिए आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि सिचुएशन में कैसे हुआ है और वहां से उसको अब कैसे हैंडल करना है, कौन से हॉस्पिटल जाना है, किसको कॉल करनी है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग शुड ऑल्सो बी देयर दैट व्हाट यू आर डूइंग goes a long way in minimizing the chances of the accidents also. So and taking the precautions and the care of the to prevent the occurrence of the ultimately key to safety, मतलब precautions ही safety है, ठीक है। So all these things which is very important for the safety and the personal hygiene also. So now further we are actually going to the diet in disease. Okay, sometimes we are actually dealing with this. So finally we are coming to the diet. Okay, so whenever anybody is sick, so what kind of the diet would be taken care of? So the diet planning disease में एक तो आपकी है कि उसमें हमें बातें किसका ख्याल रखना है, हमें कि वो जो डिजीज है पहले उसका पता होना चाहिए, और वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को कैसे अफेक्ट कर रही है, और उस एक डिजीज में कौन से पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है, डिजीजेस की। ठीक है, मतलब एक तो डिजीज का पता होना चाहिए किस टाइप की डिजीज है, उसमें कौन सा फूड लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ओके, और उसमें कैसी सी रिक्वायरमेंट चाहिए, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं समटाइम्स, बिकॉज द पर्सन इज फीलिंग लो विद द डिजीज एंड देन यू हैव टू बी टेकन केयर ऑफ कि अब कैसा न्यूट्रिशन दिया जाए, स्टेमिना एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। तो डिजीज ऑन द फूड इनटेक एंड द डाइटरी पैटर्न्स, ओके, सो इन्फ्लुएंस द डिजीज का होना चाहिए, मतलब जो भी फूड आप ले रहे हो ना, उसका इन्फ्लुएंस तो पक्का दिखना ही चाहिए ना डिजीज के ऊपर, ओके, ताकि किस तरह का फूड लिया जा रहा है और किस तरह के डाइटरी पैटर्न्स आपको सेट करने पड़ेंगे। सो अगर कोई डिजीज ऐसी है जिसमें नॉर्मली चल रहा है और समटाइम्स आपको काफी ज्यादा डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिजीज, ओके, सो हमें न्यूट्रिशनल केयर भी देखनी पड़ेगी, एंड रोल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंशन इन द हेल्थ केयर शुड ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ, ओके। सो तो आपको सबसे पहले क्या है, आपको ये देखना है कि क्या फूड क्योर कर सकता है डिजीज को, यस, दैट्स व्हाट वी आर एक्चुअली स्टडिंग, ओके, ठीक है ना, कि फूड टेक केयर करता भी है कि नहीं डिजीज को, सो यही तो हम पढ़ रहे हैं, यही हमने करना है, ठीक है, बिकॉज वी आर द न्यूट्रिशनिस्ट, सो हमें बनाना है फूड का कि वो टेक केयर करेगा, और बहुत सारे इंडियन फूड्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स हैं जो टेक केयर करते हैं। तो नाइट, जैसे कि अब नाइट ब्लाइंडनेस है, रिकॉग्नाइज डिजीज इन द एंशिएंट इजिप्ट में पहले पता चली थी, तो तो आइज का जो जूस है स्क्वीज्ड फ्रॉम द कुक्ड लिवर से, ये पुरानी बात है, ठीक है। सो कुक्ड लिवर ऑयल अगर अप्लाई कर रहे थे ना, तो उससे नाइट ब्लाइंडनेस पीछे ठीक हुई थी कुछ, ठीक है। सो ये डिस्कवरीज थी, तो हमें देखना पड़ता है कि किससे क्या, समटाइम्स बहुत ही ड्रामेटिक चीजें भी होती हैं जो डिजीज में काम आती हैं, और डिफरेंट ड्रामेटिक कॉम्बिनेशंस होते हैं विच वी डोंट टेक अदरवाइज ऑल्सो, ठीक है। सो अगर हम देखें कि पीछे देखें ना, पीछे चल के, तो बीमारियां तो हमेशा से रही हैं लोगों को, ऐसा नहीं है कि बीमार नहीं होते थे पहले, किसी तरह की बीमारियां थी, ऑब्वियसली समटाइम्स ऑफ द डिजीजेस जो हैं वो इस तरह की डिजीजेस होने लगी हैं जो न्यूली डिस्कवर हुई हैं, बट समटाइम्स क्या है कि मेनी डिजीजेस हैं जो पहले से चलती आ रही हैं, ठीक है, जैसे कोरोना अब डिस्कवर हुआ, फ्लुएंजा बाद में आया, प्लेग बाद में आई, ठीक है, स्पेनिश फ्लू बाद में आया, कैंसर, एड्स, ये सारी चीजें, रेट्रोवायरसेस बेस्ड, डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड डिजीजेस आई हैं, बट ऐसा नहीं होता था कि ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज हेल्दी, दे गेट इल ऑलरेडी भी, पहले जब से ये पैदा हुए हैं, बीमारी तो बॉडी को लगती थी, छोटी थी, कैसी थी, पहले डिस्कवर नहीं होती थी, ठीक है। सो होती थी, और उसमें क्या है कि आप उसको तब क्योर किया कैसे जाता था, ओल्डन टाइम की बात कर रही हूँ मैं,
दे आर क्योर्ड बाय द फूड एंड द न्यूट्रिएंट कंसंट्रेट्स। वाई? ठीक है। एंड कॉज्ड होती कैसे थी, सम काइंड ऑफ पर्टिकुलर ऑफ द डेफिशिएंसी डिजीजेस पहले ज्यादा थी। ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीजेस पहले ज्यादा होती थी। तो दे वुड बी एक्चुअली टेकन केयर बाय गिविंग दैट सोर्स ऑफ द फूड। ओके, सिम्टम्स का पता चल जाता था कि कैसे करना है, कौन सी डेफिशिएंसी है फूड के थ्रू, कौन सी हो रही है। ज्यादातर डेफिशिएंसी डिजीज की कुछ नहीं खा रहे हो, कम खा रहे हो, या एक पर्टिकुलर टाइप का खाना नहीं खा रहे हो, तो उस तरह के डिजीजेस हो जाती थी। ठीक है। तो अब जैसे एक फिनाइल कीटोन यूरिया एक जेनेटिक डिजीज है, इसका पता बाद में चला, क्योंकि पहले जेनेटिक डिजीजेस का तो पता ही नहीं चला। ठीक है। बिकॉज वी वर नॉट अवेयर ऑफ आर जेनेटिक मेकअप्स ऑल्सो। डीएनए का बाद में पता चला है, कुछ 100 साल पहले से ओनली। तो इन चीज़ों का बाद में पता चला कि ऐसी डिजीजेस भी होती थी। ठीक है। बिकॉज फिनाइल कीटोन यूरिया में होता क्या है कि इनएबिलिटी है बॉडी में यूटिलाइज करने की किसको, फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रोटीन्स। ओके, सो अगर इस अमीनो एसिड क्या है कि बिकॉज अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन्स। एंड फिनाइल एलानिन तो बहुत पता नहीं कितनी तरह के अमीनो एसिड्स में होता ही होता है। ठीक है। तो यंग चिल्ड्रन में फिनाइल कीटोन यूरिया इज गिवन इन द डाइट विच इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द फिनाइलएलानिन। अब ऐसे बच्चे हैं जिनको फिनाइल कीटोन यूरिया हो जाता है, तो हमने उनको फिनाइलएलानिन अमीनो एसिड नहीं देना है। ठीक है। सो उनको फिर विदाउट उसके फिनाइलएलानिन अमीनो एसिड ना हो ऐसी डाइट दी जाती है, ऐसे प्रोटीन्स नहीं दिए जाते हैं। ठीक है। बिकॉज अदरवाइज दे विल बिकम द मेंटली रिटार्डेड, बिकॉज इसके जो फेटल इफेक्ट्स हैं वो बहुत ही खराब हैं। ठीक है। दिस शोज दैट द पीकेयू कैन नॉट बी क्योर्ड बाय द डाइटरी मेजर्स। सो ऐसे डाइटरी मेजर्स से नहीं ठीक होती है, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, रिस्ट्रिक्शन डाइट देनी पड़ेगी, तो इस तरह की डिजीजेज नहीं होती हैं। अब हमारे पास ना डिजीजेज मेनली कितने तरह की हैं। एक तो होती हैं डिजीजेज या फिर कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स जो डेफिशिएंसी से होते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे डिजीजेस जो होती हैं हमारी न्यूट्रिएंट बेस्ड या न्यूट्रिएंट रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, किसी भी तरह की हो सकती हैं, एलर्जी को हो सकती हैं, ज्यादा खाने से हो सकती हैं। ठीक है। और कुछ का कोई डायरेक्ट फूड से इफेक्ट नहीं होता, वो न्यूट्रिएंट रिलेटेड होती ही नहीं है, कुछ इन्फेक्टेड या अदर काइंड ऑफ डिजीजेस होती हैं। देखो, कुछ डेफिशिएंसी होती हैं, कुछ फूड रिलेटेड होती हैं, ओवर या एलर्जिक काइंड ऑफ फूड हो जाते हैं लोग, एलर्जी हो जाती है। एंड कुछ फिर लोग क्या है कि वो न्यूट्रिएंट रिलेटेड होती ही नहीं है, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ द डिजीजेस। ओके, सो नाउ अब हम देखेंगे कि अगर हम फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एवरी काइंड ऑफ अ फूड हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो उन न्यूट्रिएंट्स को अगर हम देते हैं कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है, तो वो एक इफेक्टिव थेरेपी हो जाती है उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ, उस स्पेसिफिक काइंड ऑफ और कैटेगरी और टाइप ऑफ अ डिजीज में। ठीक है। तो फूड एंड डाइट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसऑर्डर्स। अगर डेफिशिएंसी है, अब सपोज कोई एक डेफिशिएंसी है डिजीज, तो वो जिस तरह के इंग्रेडिएंट के लिए वो डेफिशिएंट है, तो उस तरह के ही इंग्रेडिएंट के लिए को ही देना पड़ेगा आपको। ओनली देन दैट डेफिशिएंसी वुड बी कवर्ड। ओके, सो जो डिजीजेज हैं जो सेकंड कैटेगरी में आती हैं, वो आती हैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, जैसे कंजम्पशन ज्यादा ज्यादा शुगर इनटेक से, या फिर वो होती हैं टाइप 1 टाइप 2 कोई भी हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज की बात करेंगे। उसमें क्या है कि वो जेनेटिक भी हो सकती है, विदाउट जेनेटिक भी सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है वो ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर या फिर लिपिड्स खाने से डायबिटीज एंड कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेस होती हैं। सो दीज आर आल्सो रिलेटेड ना, बट दे आर ओवर, समटाइम्स द थिंग्स वुड बी डेफिशिएंट एंड समटाइम्स द फूड वुड बी ओवर, ज्यादा खाने से। तो द कंजम्पशन ऑफ द डाइट्स कंटेनिंग द एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ द फैट्स, particularly saturated fat and the cholesterol। हम सैचुरेटेड फैट की बात इसलिए करते हैं बिकॉज सैचुरेटेड फैट है जो वो जम जाता है, अनसैचुरेटेड फैट आपका जाके डिपॉजिट नहीं होगा आर्टरीज में, तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस नहीं, बिकॉज वो फिर आपकी जो आर्टरीज हैं उनको नैरो नहीं करेगा। सो द ब्लड प्रेशर वुड बी नॉर्मली चल रहा है। अगर नैरोइंग हो जाएगी तो ब्लड ब्लड के लिए पैसेज नैरो हो जाएगा, तो वो जब निकलेगा तो वो प्रेशर क्रिएट करेगा आपकी आर्टरीज पे।
ठीक है, तो वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, मोर ओवर फिर वो किसको ब्लड को आप इंजरी करेगा आर्टरीज की वॉल्स पे, so that can lead to the formation of the clot, a tear, and then it could lead to the atherosclerosis की blockage होके angina pains and heart attack होने के chances होते हैं। ठीक है, सो इन केस ऑफ द डाइट कैन क्योर द डिजीजेस। अब जब हम कह ही रहे हैं कि काफी चीजें तो डाइट, अब देखो ये फर्स्ट टू टाइप्स की है, तो डेफिशिएंसी है या ओवर है। जहाँ डेफिशिएंसी है हम उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट को उनको फीड कर सकते हैं, सो दैट दे कैन एक्चुअली हैव एंड देन दे कैन हैव दी नॉन डेफिशिएंट डिजीजेस। ठीक है, वो डेफिशिएंसी कवर हो जाए। लेकिन जहाँ पे ओवर खाने से तो हमें वो चीजें स्टॉप करनी पड़ेंगी, हमें वो रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेंगी चीजें कि अब ये नहीं खानी है, ना मीठा खाना है, ना तेल खाना है, ना सैचुरेटेड फैट खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, सो दैट दे कैन एक्चुअली कंट्रोल। सो जो डायबिटीज एंड कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेज है ना, ये एक्चुअली बेसिकली कंट्रोल ही मांगती हैं। सो यू शुड हैव द रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स एंड कंट्रोल करोगे तो कंट्रोल से आपकी डिजीजेस भी कंट्रोल हो जाएंगी, बिकॉज यू हैव नाउ दी रिस्ट्रिक्टेड डाइटरी पैटर्न्स। ओके, अब ज्यादा है तो कम करना पड़ेगा, डेफिशिएंट है तो आपको वही चीज लेनी पड़ेगी, सो दैट यू कैन नॉट जस्ट हैव। आपको कंप्लीटली कम्बैट तो करना ही पड़ेगा ना, ज्यादा को कम, कम को ज्यादा, जिसमें डेफिशिएंट है उनमें वो चीज आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी टेकन केयर ऑफ। आई एम जस्ट टेकिंग। सो गोइंग फर्दर इन द चैप्टर, सो in case अगर अब now we know that these two kind of the deficiency and the over होने से जो भी चीजें हैं जब कोई डिजीज होती है, so we can actually take care of these kind of the diseases। okay, सो हमें फिर देखना भी पड़ता है, हमें मॉनिटर भी करनी है। देखो डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं, व्हेनेवर वी गिव दैट स्पेसिफिक अमाउंट जिसमें वो चीजें डेफिशिएंट हैं, वो जब आप दोगे तो वो उसी को फिर हमें मॉनिटर भी करना है कि अब कितना डेफिशिएंट, पहले ज्यादा डेफिशिएंट था, थोड़ा दिया, थोड़ा दिया, थोड़ा दिया, एंड देन यू कैन हैव little bit normal kind of the values of that deficiency of that particular specific ingredient of that food। okay, and then you can further lead to the जो coronary artery disease होगी, डायबिटीज होगी, तो उसमें आपको कम करना है सब कुछ। ओके, सो उसमें आप कह सकते हो कि आपको डाइट थेरेपी देनी पड़ती है सिर्फ, एंड पेशेंट लीड्स टू द फुल लाइफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। डेफिशिएंस वालों की भी डेफिशिएंसी खत्म हो जाती है, जो ओवर वाली वैल्यूज होती हैं दे कैन ऑल्सो कम डाउन, इवन इफ यू एक्चुअली मेंटेन योर डाइटरी हैबिट्स एंड द लाइफस्टाइल मतलब लाइफस्टाइल जो डेफिनेशन आई मीन डेफिशिएंसीज हैं या ओवर हैं या नॉर्मल वैल्यू से ओवर हो गई हैं, सो दैट कैन ब्रिंग डाउन। ओके, एंड द पर्सन दे विल बिकम ओके। एंड इन्फेक्शियस जो डिजीजेज हैं, अब प्रॉब्लम आती है इन्फेक्शियस डिजीजेस की। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीजेज में क्या है कि वो थर्ड कैटेगरी है, उसमें फूड का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, मतलब ना तो वो डेफिशिएंट वाले में आते हैं ना ओवर आती हैं। हाँ, किसी फूड से उनको केयर किया जा सकता है। सपोज कोई इन्फेक्टेड चीज है तो प्रोटीन रिच फूड्स को सूटेबल फॉर्म में दीजिए, ठीक है, या लिक्विड फॉर्म में दीजिए। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हो गए हैं तो लिक्विड फॉर्म में दीजिए, खिचड़ी दीजिए, सेमी सॉलिड फूड दीजिए। तो इस तरह की मॉडिफिकेशंस अगर आप करेंगे, so that could be helpful। okay, so the diet planning in a disease, so the जो diet है ना, patient suffering from a specific disease is called a therapeutic diet। ये सारा क्लिनिकल एंड थेरापेटिक डाइट्स के अंडर आता है। सो जब हम स्पेसिफिकली डाइट प्लान करते हैं, सो दैट वुड बी कमिंग अंडर द थेरापेटिक डाइट्स एंड ऑल। ओके, so the therapeutic diets are adaptations of the normal and the regular diet। okay, जो therapeutic diets होती हैं उसको हम अडेप्ट कर जाते हैं। अडेप्ट का मतलब हमें अडेप्ट करना भी पड़ता है, बिकॉज इफ यू रियली वांटेड टू बी नॉर्मल। ओके, एंड रेगुलर डाइट से, ठीक है, रेगुलर डाइट और से हमें थेरापेटिक डाइट को नॉर्मलाइज करना पड़ता है, बिकॉज नाउ दिस डाइट इज फॉर द
specific disease. Okay, so at this point you may wonder like ki changes in certain kind of the condition, changing in the certain kind of the food, and changes in the certain kind of the food items also, cooking methods also. जैसे दाल चावल खाते हैं but we can make them खिचड़ी, दाल अलग बनती है चावल अलग बनते हैं और हम उनको खाते हैं, but in some kind of the gastrointestinal infections we can make them खिचड़ी, वो भी दाल चावल. सो द फॉर्म ऑफ द फूड भी फर्क होनी चाहिए. ओके, सो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की डिजीज है, तो उस डिजीज को और इंडिविजुअली जो पर्सन होता है ना उसका एग्जाम्पल लेके ही हमें चलना पड़ता है. हमें ऐसे मन से नहीं दे सकते. देखो किस तरह की डिजीज हुई है, कौन पर्सन है और उसके साथ और भी क्या दिक्कत उसको आ रही है. ठीक है, ऐसा नहीं होता ना एक डिजीज से एक ही तरह की दिक्कत आती है, समटाइम्स दिक्कतें ज्यादा होती हैं. ठीक है, सो उस तरह की डिजीज अगर हम देखेंगे तो हमें फर्क पता चलेगा कि यस इस तरह की चीज के लिए ये इस तरह का फूड देना है और इस तरह का फूड नहीं देना है, इस तरह इस किसी स्पेसिफिक काइंड ऑफ फूड के साथ भी, और इस फूड को अब इस फॉर्म में देना है. Because it depends upon the type of the disease, it depends upon the infections of the organ also, it depends upon the potential potency of the disease also, beginning है, middle है, high है, साथ में फीवर कंपनीड है, डायरिया है, इन्फेक्शन है, किसी चीज का है, फेस का है, ब्रेन का है, स्टमक का है, या कहीं और कोई चोट लगी, मतलब डिपेंड करता है. बट इसमें ज्यादातर हमें प्रोटीनेशियस डाइट्स ही ज्यादातर देनी होती हैं, प्रोटीनेशियस डाइट्स पे ही काम चलता है हमारा ज्यादा. ठीक है, क्योंकि वो रिकवरी के लिए भी हैव टू गिव. अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि गोपी सफरिंग फ्रॉम द नेफ्राइटिस. ठीक है, उसको किडनी के लिए दिया था और इन्फ्लेमेशन है किडनीज की, एंड किडनी फंक्शन अफेक्टेड हो गए हैं एंड अनएबल टू एक्सक्रीट द इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम एंड द क्लोराइड आल्सो. सो कार्तिक का भी है यही वाला हाल कि उसको 5 ईयर से सफर कर रहा है वो डायबिटीज से, तो इंसुलिन नहीं है. ठीक है, सो ये चीजें हम ये चैप्टर तो आई हैव एक्चुअली डिस्कस्ड. ओके, सो हाँ, तो हमें मॉडिफिकेशंस करनी होती है जैसे फुल फ्लूइड डाइट्स एंड द क्लियर फ्लूइड डाइट्स एंड द सॉफ्ट एंड ऑल दिस वी हैव एक्चुअली डिस्कस्ड. हाँ, कंसेप्ट ऑफ द न्यूट्रिशनल केयर में अगर हम आएंगे, देन द नेचर एंड द पॉसिबल ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज. ओके, हमें सबसे पहले देखना है कि डिजीज क्या है, क्या नेचर है और उसकी ड्यूरेशन कितनी है, कितनी देर से चल रही है. दूसरा, अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ द डिजीज, हुई कैसे, ऑनसेट कैसे हुआ, किस रीजन से हुई. ठीक है, सो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट रीजन ऑल्सो. एंड देन फूड हैबिट्स ऑफ द पर्सन, फिर फूड हैबिट्स देखेंगे, लाइकिंग डिसलाइकिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप किसी तरह का फूड उसको दे रहे हो तो वो हो सकता ना खाए, तो आपको तब भी दिक्कत आएगी. ठीक है, सो उसको उसकी टाइप का फूड और वो भी न्यूट्रिशियस और बना के देना पड़ेगा, and according to the nature and the type of the disease also. So nature of the dietary change is required. तो उसी ये पहले 3 रीजंस हैं, इसके अकॉर्डिंगली फिर आप देखेंगे कि अब डाइटरी चेंजेस कैसे की जाएं उसके खाने में. एंड आपको ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि उस पर्सन को जिसको आपने देनी है, जिसको डिजीज है, उसको कोई उस तरह की एलर्जीज ना हो, सो दैट यू कैन नॉट जस्ट गिव दी that particular ingredient for which he is actually allergic. ठीक है, वो नहीं हमने डाल के देना बीच में. सो उसके लिए हमें फिर और भी एक टेक केयर करना पड़ेगा, समटाइम्स हमें डाइटिशियंस के पास ही जाना पड़ता है. ठीक है, सो अब आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि किस किस चीज़ों की आपको ख्याल रखना पड़ेगा. ठीक है, तो बिकॉज यू पीपल आर ऑल्सो गोइंग टू गाइड फॉर द डिजीजेज ऑल्सो. ओके, ठीक है, एंड तो होगा क्या कि एन एस्टिमेट ऑफ द एडिक्वेसी ऑफ द पेशेंट्स यूजुअली डाइटरी टेक इनटेक. होता क्या है कि सबसे पहले हमने, या न्यूट्रिशनिस्ट है जो भी, डाइटिशियन है जो भी, वो एस्टिमेट लगाएगा कि पेशेंट की कितना वो डाइट ले सकता है. समटाइम्स आपकी भूख कम है, किसी और की कम है, कोई बंदा ज्यादा खा लेता है, कोई कम खाता है, तो उसकी एडिक्वेसी कितनी है, कितना फूड आइटम वो ले सकता है, खा सकता है. फिर कोई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर है तो उसी को टेक केयर करनी पड़ेगी. और प्लान करना है ओवर कमिंग ऑफ द न्यूट्रिशनल एंड द रिलेटेड प्रॉब्लम्स के को भी ध्यान में रख के भी डाइट बनानी है.
अब ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेशेंट्स एजुकेशन, अब हमें ये भी देखना है कि वो पेशेंट कितना एजुकेटेड है और वो कितना अपना ख्याल रख सकता है, किस तरह से वो, कितना वो एजुकेटेड है, कितनी उसको समझ है, किस तरह का वो, उसको अगर हम बनाने के लिए कह दें इस तरह से ऐसे बनाना है तो वो कितना समझ रहा है, बिकॉज एजुकेशन मैटर करती है जब हम उसको समझाते हैं इंग्रेडिएंट्स के लिए खाने के। सो द नोट्स ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द पेशेंट, अब हमें रेगुलर मॉनिटरिंग भी करनी है, रेगुलर इंटरवल्स पे मॉनिटरिंग करनी है, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। पहले तो जब वो स्वेरिटी पे है तो हर दिन, हर घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद, फिर एक एक दिन के बाद, फिर दो दो तीन तीन दिन के बाद, फिर चार चार पाँच पाँच दिन के बाद, फिर फाइनली हफ्ते के बाद, फिर जैसे रिकवर होना शुरू कर देते तो हम 15 15 20 20 दिन, महीने के बाद भी, इट डिपेंड्स अपॉन द डिजीज ऑल्सो। ओके, सो बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल फैक्टर्स भी होते हैं जो प्ले करते हैं रोल इन डाइट प्लानिंग में भी। क्योंकि देखो सोशली भी हमें देखना है, उसके पास फाइनेंशियल स्टेटस कितना है, इकोनॉमिक का भी देखना है, सोशली वो किस एरिया को बिलोंग करता है, क्या उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, क्योंकि सोशली भी, कल्चर के अकॉर्डिंगली भी खाना डिफरेंटली लोग खाते हैं ना, हर घर में बनाने का तरीका। साइकोलॉजिकली भी वो उसकी कैसी है, अब साइकोलॉजिकल स्टेट, खाएगा नहीं खाएगा, न्यूट्रिशन चाहिए नहीं चाहिए, उसको भी काउंसलिंग की जरूरत है। ठीक है, इमोशनल फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर। ओके, सो इस तरह की चीजें, मतलब छोटी छोटी हर चीज का हमें ख्याल रखना पड़ता है। अब देखेंगे कि अगर हमें किसी भी कम्युनिटी में न्यूट्रिशनल एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे जाना है तो हमें करना क्या है, हमें क्या क्या फैक्टर्स पे कंट्रोल करना है, कि प्रमोट करना है प्रिवेंटिव मेजर्स इन डीलिंग विद द न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हाई रिस्क ऑफ द पॉपुलेशन। हमें क्या देखना है कि ऐसी कलेक्टिव पॉपुलेशंस भी होती हैं जिन पे हमें न्यूट्रिशनल मेजर्स पे काम करना पड़ता है, बिकॉज दे आर हाईली वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं पॉपुलेशन में। सो एडवाइजिंग द पीपल दैट इफ दे आर ऑलरेडी सफरिंग विद दिस डिजीज तो वो अपने घर पे रहें ताकि लोगों को ना हो, वो अगर होने वाली है, ऐसी डिजीज है, फैलने वाली, स्प्रेडिंग है तो, और इस तरह का फूड खाएं सो दैट दे कैन एक्चुअली सेव देमसेल्व्स। ओके, सो पुटिंग पीपल इन टच विद प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, उनको कहो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे जाओ, सब सेंटर स्टाफ है, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, तो उनको पास से आपको ये चीजें मिल जाएंगी। अगर कोई उनको बताने वाला नहीं होगा तो देन दे वोंट बी गेटिंग द नॉलेज। ओके, then informing the community about the referral services, referral services होती हैं कि एक प्रोविजन होता है रेफरिंग पेशेंट टू अ लार्जर हॉस्पिटल ऑफ द सीरियस डिजीज। ऐसा होता है कि आप तो उनको डिस्पेंसरीज में भेज रहे हो, वहां पे हो सकता है वो ठीक हो जाए, बट समटाइम्स क्या होता है कि वो घर से इतनी लेट गए हैं कि अब उनसे नहीं संभलेगा ना छोटे स्मॉल डिस्पेंसरी से, देन देयर शुड बी प्रोविजन स्मॉल डिस्पेंसरीज में ट्रांसपोर्ट का भी, और वैसे भी एक प्रोविजन होना चाहिए सो दैट दे कैन एक्चुअली मूव टू दी बिगर हॉस्पिटल्स एंड ऑल। ओके, सो उनको पहुंचाने का भी पूरा इंतजाम होना चाहिए, ये नहीं है कि सिर्फ कह दिया कि बड़े हॉस्पिटल जाओ और है नहीं है वहां पे कोई कहने वाला बताने वाला नहीं है। ठीक है, तो तब उनको दिक्कत आएगी। ठीक है, और so in some cases of the serious cases also। okay, so हमें नोटिस करना है कि सबसे पहले हमारा जो मेन एम्फेसिस होना चाहिए ना, दैट शुड बी ऑन एम्फेसिस ऑन द प्रिवेंशन, ताकि एक को हुई है उसको भी कैसे बचाया जाए, और अगर वो बीमारी फैलने वाली है तो दूसरों को भी कैसे बचाया जाए, तो प्रिवेंटिव मेजर्स आर आल्सो। सो ये बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंस है कि अगर एक को हुई है कम्युनिटी में तो ऐसी फिर अगर उसको हुई है ना तो उसके बाद उसको फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करें और बाकियों को भी अवेयर करवाएं, कि ताकि अगर इसको बंदे को ये फैसिलिटीज मिल रही हैं, अगर कोई ऐसी बीमारी से, ऐसी चीजों से कोई और सफर करता है तो दीज आर द फैसिलिटीज which are provided by the government or the voluntarily organization, स्मॉल सब सेंटर्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं जहाँ पे वो सब है, तो अवेयर कराना भी बहुत जरूरी है प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में। ठीक है, और अगर वो अवेयर है और हो सकता है वो यूज ही नहीं कर रहे हैं उन सिस्टम्स को, तो वो भी उनको बताना है कि नो, यू शुड एक्चुअली मेक एफर्ट to use these services because the government is also making efforts for them। okay, so this is actually I'm talking about the unprivileged person, जैसे स्लम में होते हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं ना, उनके केसेस में ऐसा ज्यादा होता है। ऐसा भी है कि आपको बहुत गवर्नमेंट ने प्रोग्राम भी उन लोगों के लिए चलाए हुए हैं, तो उनको नॉलेज ही नहीं है, और नॉलेज है तो वो यूज नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द इलिटरेसी और समथिंग, मे बी एनी कुड बी द रीजन। ओके,
अगर कोई बंदा इल है, सिकनेस है, इल हो गया है, बीमार है, एंड उसको प्रोवाइड करनी है हेल्प ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये नहीं है कि एक दिन हेल्प कर ली, उसको तो लंबी बीमारी है या लंबी बीमारी नहीं भी है, कम है, तो उसको थोड़े दिन तक, हफ्ता 10 दिन उसको चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन हेल्प कर दी एंड देन फिर देन यू हैव लेफ्ट। ठीक है, तो वो बीच में नहीं छोड़ना है। ठीक है, सो मेडिकल डॉक्टर एक्सेस ऑफ द हॉस्पिटल्स, मेडिकल सेंटर्स, क्लिनिक्स एंड पर्सनली हैंडल द सीरियस केसेस। सो इन सब चीज़ों की नॉलेज, प्रोविजन, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन हमें सब प्रोवाइड करनी है। ठीक है, सो डेवलपिंग डिजीजेस भी होती हैं समटाइम्स, एंड टारगेट ग्रुप ऐसा होता है जिसके जो लैक ऑफ एजुकेशन होता है और एडवाइस नहीं भी लेता है, तो भी तो वो यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, लिटिल बिट हेजिटेंट होते हैं या ऐसी भी कुछ भी रीज़न लगा लो। ठीक है, सो डाइट थेरेपी है जो, वो भी देनी होती है उनको, तो वो भी बहुत केयरफुली एजुकेट करके उनके लिए टाइप ऑफ द डिजीजेस एंड ड्यूरेशन ऑफ द डिजीजेस के हिसाब से बनेगा। एंड अगर अब हम डिस्कस करें प्रिवेंशन ऑफ द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, अगर हम अब स्पेसिफिकली यही लेके चल लें कि अब हमने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस को डिस्कस करना है। ठीक है, कि कुछ डेफिशिएंसी है, तो डेफिशिएंसी से सीधा सीधा मतलब आपको समझ आ रहा है कि अगर डेफिशिएंट है तो वो सब चीज़ों में तो डेफिशिएंट होगा नहीं। ठीक है, कोई एक तरह की चीज़, अब जैसे विटामिन सी है, बेरी बेरी हो गई है डिजीज। ठीक है, बेरी बेरी हो गई है, तो बेरी बेरी के साथ इसका मतलब विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, विटामिन सी प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट किस फॉर्म में प्रोवाइड करना है, जूसेस के फॉर्म में प्रोवाइड करना है, किस फॉर्म में करना है। ठीक है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से डेफिशिएंसी डिजीजेस को कवर करना जो सीधा सीधा पता चलता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि एनर्जी, मतलब फॉलोइंग न्यूट्रिएंट लैकिंग इन द डाइट। अब सम टाइम्स हमें एक चीज देखनी चली पड़ेगी ना कि कौन सा न्यूट्रिएंट डाइट में लैकिंग है। सबसे पहले अगर तो ओवरऑल एनर्जी ही लैकिंग है, तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो, एंड फैट्स भी जो स्टोर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो हमें कार्ब्स रिच फूड देने पड़ेंगे जिसमें हमें सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स, फ्रूट्स सच एज बनाना, मैंगो, शुगर्स, ये सब देने पड़ेंगे। और फिर फैट रिच में nuts, oil seeds, and fish and meat containing high butter, vegetable oils, concentrated sources of वनस्पति घी वगैरह, बटर, ये सब देना पड़ेगा। एंड अगर डेफिशिएंसी प्रोटीन्स में, देखो दिस इज जनरली वी आर गोइंग, सीधा सीधा कह दिया एनर्जी, एनर्जी है तो लिपिड्स एंड कार्ब्स देने पड़ेंगे। प्रोटीन है तो हमें पल्सेस, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, मीट, फिश, नट्स, ऑयल सीड्स, ये सब देना पड़ेगा। अब हम आते हैं पर्टिकुलरली, अगर तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, तो दैट मींस वी हैव टू गिव द रेटिनॉल, जो किसमें होता है, लिवर, एग योक, क्रीम, बटर, घी, मिल्क में ये प्रेजेंट होता है। और बीटा कैरोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है येलो एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। अब अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो एक्शन ऑफ द सनलाइट होना चाहिए, क्योंकि सनलाइट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द विटामिन डी अवेलेबल होता है। और एनिमल फूड्स लाइक एग्स, बटर, फिश एंड लिवर ऑयल। ठीक है, विटामिन ई है तो वेजिटेबल्स, ऑयल, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस एंड ऑल सीड्स। विटामिन के है तो डार्क लीफी वेजिटेबल्स, एग योक। एंड विटामिन B1 है तो होल ग्रेन सीरियल्स, पल्सेस, नट्स, योक एंड मीट। एंड राइबोफ्लेविन है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स, ऑर्गन, मीट्स एंड लिवर, किडनी। नियासिन है तो सीरियल, पल्सेस, मिल्क, नट्स एंड ऑयल सीड, ऑर्गन्स, मीट, फिश है। ठीक है, इन सब चीज़ों को देना पड़ेगा हमें। अच्छा, अब इसी तरह से फोलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। सो दीज काइंड ऑफ द डेफिशिएंसी, एनी काइंड ऑफ। सो पहले तो हमारे मैक्रोमोलेक्यूल की डेफिशिएंसी हमने डिस्कस की है, जिसमें एनर्जी आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गए थे, जिसमें कार्ब्स एंड द प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड द प्रोटीन्स। फिर आगे हमारे विटामिन्स, लिपिड सॉल्वेंट। फिर आगे आपके विटामिन, वाटर सॉल्युबल, एंड देन आगे आपके मेन मिनरल्स। ओके, सो एक्सक्यूज मी श्याम सुंदर जी, प्लीज, आप डिस्टरबेंस आ रही है। Ma'am, somebody is unmute and there is disturbing. हाँ, श्याम सुंदर जी प्लीज आप अपना म्यूट कीजिए। यस, सो व्हाट हैपेंड यार। ठीक है, सो
सो दीज आर, देखो मैक्रो मॉलिक्यूल से लेके हमने प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ओके, उसके बाद हमने लिपिड सॉल्युबल वाइटामिन की डिस्कस किया, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन डिस्कस किए, उसके बाद जो मिनरल्स के नाम है, इन्हीं की डेफिशिएंसी हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती, ठीक है, और तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। कभी फाइबर डेफिशिएंसी नहीं होती है, फाइबर हमें लेने चाहिए। वाटर डेफिशिएंसी भी होती है व्हेनेवर यू वुड बी हैविंग द डिफरेंट केसेस ऑफ डायरिया एंड इन्फेक्शंस, वाटर लॉस हो जाता है तब, ठीक है, अदरवाइज नहीं होती है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका आएगा हाँ, अब ऐसी कुछ चीजें हैं जब हमें एनर्जी के लिए देनी होती है। अब सपोज हमने कह दिया एनर्जी रिच चाहिए हमें फूड, तो हम कार्ब्स एंड लिपिड्स लेंगे, लेकिन अब हमें ये देखना पड़ता है कि हम ना ज्यादा कम्प्लेक्स कार्ब्स, स्टार्च एंड फाइबर कंटेनिंग फूड्स दे आर हेल्पफुल व्हेन कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर, बिकॉज ये बहुत देर से डाइजेस्ट होते हैं, तो इसके शुगर के ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करने के लिए, because they are the big molecules, so they take time to provide, okay, because इनकी digestion, they are the big molecules, complex molecules, but diabetes के लिए helpful होते हैं because the glucose molecules they give after taking a time of for their digestion, okay, because जो जल्दी जल्दी डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड या मोनोसेक्राइड हम खाएंगे तो ग्लूकोज इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। So some fibers such as the guar, pectin, lignin, they have a cholesterol lowering actions also, ठीक है। So they may be benefited in the hyperlipidemia also, excess of the lipids जब हो जाता है ना, वो fats और blood में fats ज़्यादा हो जाते हैं। So the consumption of the fiber containing foods is associated with the lower chances of the suffering from the constipation also. And eating fiber rich foods may protect the individual from the colon cancer also. And then consuming a diet rich in fiber may help to induce the satiety or feeling of the fullness and therefore prevent overeating, ठीक है। So implication ये हो जाती है किसके लिए, for prevention of the obesity, ठीक है, और एक्सट्रीम ओबीज पीपल को डाउन करने के लिए, ओके। सो अब हमें देखना है कि वेरी हाई फाइबर इनटेक कैन बी हार्मफुल आल्सो, ठीक है। बहुत ज्यादा भी नहीं लेना होता कि हम फाइबर 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 ही लेते हैं, तो वो भी हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम बॉडी को अवेलेबल नहीं होते हैं फिर फाइबर के थ्रू, ठीक है। सो ऐसी सी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए कि इतना ज़्यादा, मतलब एक्सेस में हर चीज़ जो है वो दिक्कत क्रिएट करती है, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट यूनिट इज द डाइटरी मैनेजमेंट, ओके, तो न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं। सो इसमें हमने क्या करना है कि प्रिंसिपल जो डाइटरी मैनेजमेंट के हैं वो देखने, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स सच एज डायरिया एंड फीवर, principle and practice of the dietary management of the diabetes, okay, so these are the things. So इसमें हमें देखना है कि हमें we have to meet the requirements of the specific conditions and maintain the restore the good condition in such situations, okay, हमें करना है, देखना है। और इसमें हमें ये भी चेक तो देखो हमेशा ही करते रहना है कि कोई डेफिशिएंसी ना हो। अब कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं लाइक प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, उसमें क्या है कि हाई एनर्जी फूड देने और स्पेसिफिकली प्रोटीन देना है, एंड ऐसे चक्कर में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस भी हमें देने पड़ते हैं, समटाइम इंट्रावीनस देने पड़ते हैं अगर सीवियर डायरिया हो जाए तो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन हो जाता है। तो हाई एनर्जी फूड देना, हाई प्रोटीन रिच देना, एंड टॉलरेंस इम्प्रूव्स दी सॉलिड फूड्स, मिनरल एंड वाइटामिन सप्लीमेंट्स भी देने पड़ेंगे अलॉन्ग विद, एंड ट्रीटमेंट भी देनी पड़ेगी इनमें कि अब डिजीज को भी तो ट्रीट करना है ना, बिकॉज पता क्या है, जब हम डिजीजेस की बात करते हैं फूड से हम काफी हद तक करते हैं, बट उसके साथ साथ काफी देर तक पहले उसकी मेडिसिन भी चलेगी, मेडिसिन चलेगी तो उसके सिम्टम्स जो है ना वो ठीक हो जाएंगे, एंड देन अलोंग विद फूड स्टार्ट कर दो, एंड देन जब मेडिसिन बंद हो जाएगी तो फूड से हम उसको टेक केयर कर सकते हैं। अगर एनीमिया है तो आयरन डेफिशिएंसी, ऑब्वियसली आयरन डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें 200 मिलीग्राम फेरस सल्फेट 3 टाइम्स टेबलेट भी देनी पड़ेगी। तो डेली एक टेबलेट फोलिक एसिड की भी होगी, B12 की भी होगी, क्योंकि जो B12 है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है।
फोलिक एसिड भी आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है एंड विटामिन सी इज आल्सो हेल्पिंग इन द आयरन एब्जॉर्प्शन. अगर आप आयरन ले रहे हो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है तो देन आल्सो इट्स अ बैड थिंग. Vitamin B12 should also be given to prevent the complications when B12 deficiency is treated with the folate alone. ठीक है. तो कहते हैं कि अगर विटामिन B12 नहीं देते हैं ना तो वो प्रिवेंट करता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जबकि फोलेट जो है वो अकेला भी टेक केयर कर लेता है आयरन की एब्जॉर्प्शन को. बट उस केस में क्या कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है. सो B12 शुड आल्सो बी गिवन अलोंग विद. तो उससे क्या होता है कि जब डेफिशिएंसी होनी शुरू होती है सेंसरी डिस्टर्बेंसेस आनी शुरू हो जाती हैं, मस्कुलर वीकनेस आनी शुरू हो जाती है एंड इन सम सीवियर केसेस सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड होनी शुरू हो जाती है. So control of the hookworm or other infestations and the malaria has also been undertaken where they necessary, because in SEC manifestations में ये सब complications along with. अब पता क्या है, एक डिजीज जब अनीमिया होता है ना तो आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स साथ में होनी चाहिए कि बॉडी ओवरऑल वीक हो जाती है. तो एक वीक चीज को ना, एक वीक बॉडी को ना और डिजीजेस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. ठीक है. सो एनीमिया होने पे काफी और एक दो जो एक पहले एक इंग्रेडिएंट है वो दूसरे की हेल्प करता है एब्जॉर्ब होने में, तीसरे की हेल्प करता है, चौथे की हेल्प करता है. तो इस तरह से एक कैस्केड होता है बॉडी में. ठीक है. तो एक अगर डेफिशिएंस हो जाता है ना तो बाकी सारी चीजें भी डेफिशिएंट होनी शुरू हो जाती हैं. एंड जब डेफिशिएंट होकर वीक होनी शुरू हो जाती है तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज बॉडी वीक है तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ लेगा जिनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है. ठीक है. दैट्स कॉल्ड द इम्यूनिटी वीक होना. अब विटामिन ए डेफिशिएंसी से क्या होगा कि इमरजेंसीज आ जाती हैं, जैसे कॉर्नियल साइन हो जाते हैं, जीरोसिस है, कॉर्नियल अल्सरेशन है, कीरेटोमेलेशिया. दीज आर आई डिजीजेस. ओके. सो ये मेल नरिश्ड बच्चे होते हैं जिनको साइन ऑफ जीरोप्थेल्मिया दिखने शुरू हो जाते हैं हमें. ठीक है. तो आउट पेशेंट्स जो होते हैं, मतलब चिल्ड्रन ओवर 1 ईयर, तो उनको तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स इन ऑयल देनी पड़ती हैं हमें, और या फिर इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट करना पड़ता है. और कुछ ऐसे इन्फेंट्स होते हैं जिनको डोज हमें देनी पड़ती है आफ्टर 1 वीक, इतनी ही डोज पर वीक के डिफरेंस पे. ठीक है. तो ऐसी सारी चीजें हैं जो हमें डोजेस भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किसको कितनी देनी है, एज के अकॉर्डिंगली ऑल्सो. ठीक है. So for every disease, it's not for the vitamin A deficiency also. अगर आपको PM को ट्रीट करना है, डायबिटीज को ट्रीट करना है, ठीक है. सो समटाइम्स क्या है आपको कि आपको वाटर लॉस हो जाता है. ठीक है. वाटर लॉस हो जाएगा और डायरिया हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको ऐसा सा है कि आपको फ्लूइड एडमिनिस्टर करना पड़ेगा. रिंगर्स लैक्टेट फॉलोइंग कॉम्पोजिशन में, जैसे 2.4 ml ऑफ लैक्टिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एज नीडेड टू एडजस्ट द पीएच आल्सो, ऑब्वियसली सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड द क्लोराइड आल्सो. तो इनको आप ठीक अमाउंट में देंगे तो रिहाइड्रेशन के लिए हेल्पफुल होगा. सो टाइप ऑफ फीड जो है, डे 1 में ओरल रिहाइड्रेशन ORS देना है. अगर स्टिल डायरिया है हमें तो वो नंबर ऑफ द फीड्स पर डे कितनी होंगी, 12. मतलब स्लो स्मॉल, क्योंकि जब डायरिया होता है, वॉमिट्स आती है ना, तो हम एकदम से सब कुछ नहीं दे देते हैं. सो वी हैव टू गिव द स्मॉल लिक्विड डाइट्स आल्सो. ठीक है. सो हाफ स्ट्रेंथ मिल्क फीड देनी है अगर डायरिया नहीं है, वॉमिटिंग और डिहाइड्रेशन नहीं है तो. ठीक है. तो आपको वो भी देनी पड़ेगी. ठीक है. तो हाफ स्ट्रेंथ मिल्क देना है आपको. हाफ स्ट्रेंथ मतलब उसमें क्रीम निकाली हुई होनी चाहिए, हाफ, फुल नहीं देना. फुल स्ट्रेंथ मिल्क फीड्स देनी हो वो 4-5 डेज के बाद, 6 डेज के बाद देनी है. जब आपको इन्फेक्शन है, डायरिया है, वॉमिटिंग है, देन इट शुड बी अवॉइडेड टू गिव दीज काइंड ऑफ दी फीड्स. ओके. सो यहाँ पे आपकी बुक में ना कई सारे प्रैक्टिकल्स भी दिए हुए हैं, जैसे हाई एनर्जी फीड दी हुई है. तो उसमें क्या है, इंग्रेडिएंट्स कैसे होना चाहिए जो भी आपने प्रिपरेशन करनी है. ठीक है. उसमें काउज मिल्क है, बफेलो मिल्क है, स्किम्ड मिल्क है, फुल क्रीम मिल्क है, इवेपोरेटेड मिल्क है एंड अदर थिंग्स. तो मिल्क प्रिपरेशन में कितना अमाउंट लेना, ऑयल कितना, शुगर कितनी लेनी है, तो इस तरह से बना के भी चीज़ें, एक आधे एग्जाम्पल दिया हुआ है.
ठीक है। अगर और बड़ी तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे बेरी बेरी होती है विटामिन सी से, प्लेग्रा है, एरिबोफ्लेविनोसिस है, रिकेट्स है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, बेरी बेरी थायमीन एंड ऑल। ठीक है। मैनेजमेंट में थायमीन सप्लीमेंटेशन ऑफ बी कम्प्लेक्स देना चाहिए। प्लेग्रा जो होता है नियासिन से होता है, निकोटिनामाइड देना पड़ेगा। सो इस तरह की चीजें हैं जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है, वो तो सीधा पता है जिस डेफिशिएंसी से हो रही है वही चीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो डायरिया में आपको करेक्ट करना होता है क्या, डिहाइड्रेशन, रिहाइड्रेट करना है, मेंटेन फ्लूइड एंड द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आल्सो। ठीक है। एंड साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होते हैं कि लिटिल और नो यूरिन एंड यूरिन पास्ड ऑन द डार्क येलो कलर का, सडन वेट लॉस हो जाएगा, ड्राई माउथ होएगी, सन कैन टीयरलेस आईज हो जाएंगी, सैगिंग ऑफ द एंटीरियर fontanelle and the soft spot on the head in case of the infants, loss of elasticity in the skin होनी शुरू हो जाती है। अगर severe हो तो रैपिड वीक पल्स हो जाती है, फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। ठीक है। सो इन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए भी स्पेसिफिक थेरेपीज़ हैं, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपीज़ हैं। ठीक है। सो इसके बाद है डाइटरी मैनेजमेंट, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज एंड डायबिटीज में करनी पड़ेंगी ये, क्योंकि डेफिशिएंसी नहीं है। अब कॉर्नरी आर्टरी डिजीज का हमें पता है कि हाई अमाउंट्स ऑफ द फैट्स की वजह से हो, इसका मतलब फैट्स कम करने पड़ेंगे। ठीक है। तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज एंड द हाइपरलिपिडीमियास एंड द हाइपरटेंशन, तो CHD एंड द कॉर्नरी हार्ट डिजीज है ना, जो वो लीड करती है एंजाइना पेक्टोरिस को और मायोकार्डियल इन्फेक्शन को। ठीक है। क्योंकि उसमें हाई लेवल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल होते हैं, TGs होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। ओके। सो इसको हम हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं जब ये दोनों चीजें ज्यादा होती हैं, मतलब लिपिड ज्यादा है। और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लिपोप्रोटीन्स एंड भी होती हैं, HDL, LDL, VLDL, इनके अमाउंट्स भी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो हमें करना क्या है इन चीजों में, जब हमें पता ही है कि सब कुछ ज्यादा है, ज्यादा पहले ही हमने डेफिशिएंसी की बात की है। ठीक है। तो अब ज्यादा है तो हमने पेशेंट को वही अमाउंट ऑफ फूड देना है विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द वेट। ठीक है। एक्स्ट्रा वेट जिससे पुट ऑन हो उतनी डाइट नहीं देनी जितनी रिक्वायर्ड है मेंटेन करने के लिए। ठीक है। एंड नेक्स्ट है मेन्यू प्लान करना पड़ेगा जो कि फूड इजी टू डाइजेस्ट है। रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा हमें स्टिमुलेंट सच एज टी, कॉफी एंड कोकोआ वगैरह, ये सब। सोडियम लिमिट करना पड़ेगा बिकॉज दैट आल्सो लीड्स टू दी हाई बीपी। एंड इफ ओडिमा प्रेजेंट है, मतलब बॉडी में वाटर आई मीन लॉगिंग ज्यादा है, लॉगिंग मतलब ज्यादा वाटर इनटेक है, तो वाटर लॉस भी हो जाता है। तो सोडियम इनटेक को सब्सटेंशियली रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा हमें, बिकॉज सोडियम की इनटेक से वाटर रिटेंशन होनी शुरू हो जाती है बॉडी में। ठीक है। सो ऐसे ऐसे हर चीज का ख्याल रखना है। ये सब एग्जाम्पल्स देके पढ़ा रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो भी आपकी डिजीज है, जब आप किसी पेशेंट से पूछोगे, सो आपको उसकी हिस्ट्री नोट करनी है, दिक्कतें क्या क्या हैं, फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली, अगर वाटर रिटेंशन है तो सोडियम रिड्यूस करो, बीपी ज्यादा है तो सोडियम रिड्यूस करो, पोटेशियम रिड्यूस करो। ठीक है। और अगर डेफिशिएंसी है तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करो। लेकिन अगर कॉर्नरी आर्टरी तो फिर आपको कोलेस्ट्रॉल एंड दूसरे अमाउंट टीजीज के कम करने पड़ेंगे, और डिफरेंट काइंड ऑफ दी डेंसिटी लिपिड्स को भी कम करना पड़ेगा, LDLs को, लिपोप्रोटीन्स को। ठीक है। सो ये है आपकी थोड़ी सी डाइट्स एंड ऑल। सो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज पढ़ना शुरू कीजिए डिफरेंट काइंड ऑफ द डिजीजेस, तो ही केसेस ले पाएंगे। इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िए, व्हिच एवर आई हैव टोल्ड यू। इसमें बड़ा सारा है डिफरेंट काइंड ऑफ। देखो हर डाइट को मैं डिस्कस नहीं कर सकती। अगर आपको 1800 कैलोरी की डाइट बनानी है, ठीक है, या आपको 1000 किलो कैलोरी लिक्विड डाइट बनानी है, मतलब 1000 किलो कैलोरी का मतलब ये है कि आपको सारे दिन में जितनी डाइट देनी है, जितनी बार भी देनी है, उसमें 1000 किलो कैलोरी से कैलोरीज ज्यादा नहीं जानी चाहिए। 1200 की, 1800 की, ये आपको देख के बनाना पड़ता है। इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल्स कि कैसे फॉर whom you are making the diet and for which kind of the disease you are handling, whether a deficiency और over है, या फिर वेट लॉस करना है, या फिर नॉर्मल है, फटीग एंड स्टेमिना से फाइट करना है, या फिर उनको अपने पीएच लेवल्स बैलेंस करने हैं, वट एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्सन वुड बी। So there are so many kind of the examples of the diets are given, so you can go through that and then you can learn. यहाँ पे बार बार डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज हर किसी का ऐसे ही दिया हुआ है। आप इंडिविजुअली आप पढ़ सकते हैं उसको, so that you can have the good knowledge of the।
क्योंकि उसके ऊपर एग्जाम्पल दिया है कि अगर ऐसा है तो ऐसी डाइट है, नीचे ऐसा है तो ऐसी डाइट है, यू कैन एक्चुअली लर्न अबाउट दैट। उसमें बताने वाले ने जनरल मैंने बता दिया, अब ये स्पेसिफिक दी हुई है, ठीक है। So if you have any question then you can ask, otherwise it's enough for today. I have discussed, so we'll be meeting tomorrow. हाँ जी मैम। मैम आपने आगे जो स्वच्छता और सुरक्षा का जो टॉपिक लिया था ना, उसमें वो रिकेट्सिया वो क्या है मैम? वो रिकेट्सिया रिकेट्सिया डिजीज होती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी। रिकेट्सिया हाँ, कहाँ पे था ये? वो स्वच्छता और सुरक्षा का जो आपने टॉपिक लिया था, वो विषाणु जीवाणु उसमें था ना रिकेट्सिया, वो क्या है? वो तो वायरस है। वायरस है? अच्छा ओके। और आपने बेरी बैक्टीरिया बेरी बोला? वायरसेस हैं, अगर आप उसमें जाते हैं। रिकेट्स इज अ डिजीज, वो तो बोन डेंसिटी विटामिन डी की अगेंस्ट डिजीज होती है। हाँ जी। और वो बेरी बेरी बोला, वो B1 की कमी से होता है। स्कर्वी, स्कर्वी सी से होता है। मैं कई बार फ्लो में ना, मुझे याद नहीं रहता एक्चुअली, मेरा रट्टा अच्छा नहीं है बहुत, आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ एग्जाम में ना। B1 से बेरी बेरी B1 से है, स्कर्वी सी से है, ऐसे, ठीक है। हाँ हाँ कई बार मैं ओके। मिक्स कर जाती हूँ कि कौन सी विटामिन से कौन सी है, बट वो याद रख लिया करो, किसी ना किसी की डेफिशिएंसी से ये होता है, ठीक है। और राइबोफ्लेविन वो आपने बोला, वो कौन सा विटामिन है? हाँ, राइबोफ्लेविन। मल्टीविटामिन, वाटर सॉल्युबल। अच्छा ओके। दो तरह के विटामिन होते हैं ना, दो तरह के विटामिन होते हैं, और वाटर सॉल्युबल होते हैं एंड लिपिड सॉल्युबल। A, D, E and K दे आर द लिपिड सॉल्युबल, एंड बाकी जितने भी हैं वो सब वाटर सॉल्युबल है। ओके ओके। और हिपेटाइटिस मतलब कि येलो फीवर ना? अच्छा ओके, थैंक यू वो सब मैम। किताबों में लिखा हुआ है, ये तो आपको थोड़े थोड़े नोट्स बनाने पड़ेंगे। इवन व्हेन यू आस्क मी ना, तो मैं भी मिक्स कर जाती हूँ इन चीजों को कि किससे क्या है, मुझे भी याद करना पड़ जाता है बिकॉज इतना रटाफिकेशन, मेरी भी मिक्सिंग होनी शुरू हो जाती है बिकॉज समटाइम्स आई टेक द क्लासेस ऑफ द डिफरेंट पर्संस एंड देन, तो मेरी भी मिक्सिंग हो जाती है समटाइम्स कि इससे ये होता है ये, बिकॉज ये तो चीजें ना रटने वाली होती है, ये है तो ये होता है, ये है तो ये, समटाइम्स वो कई बार मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। मैडम, आप जो चैप्टर पढ़ाते हैं वो हम प्रायोरिटी पे ले एग्जाम के लिए? देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो पर्सनल क्लासेस होती है ना, ये होती हैं आपकी प्रॉब्लम्स लेने के लिए, जस्ट द क्वेश्चंस आप पढ़ें और 2 घंटे मुझसे पूछें, सो दैट यू कैन। बट मेरा ट्राई ये होता है कि मैं स्टार्टिंग से जितना भी मेरा हो सके, जितनी भी क्लासेस हैं, सो आई कैन एक्चुअली टीच यू हाउ मच सिलेबस आई कुड कवर। पर ये सिलेबस कवर इनमें होता नहीं है बिकॉज ये क्लासेस बहुत थोड़ी होती हैं, ठीक है। नंबर ऑफ द क्लासेस इज वेरी लेस और हम सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं इसमें, ठीक है। बट मेरी ट्राई यही होती है सो दैट आई कैन टीच यू, फटाफट फटाफट हर चैप्टर में जाती हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आई रियली वांट टू मेक यू, अगर मैं ऐसे एक एक चैप्टर पढ़ाना शुरू करूँ ना, ऐसे ऐसे छोटा छोटा, तो वो कवर नहीं होता है, ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, सिलेबस नहीं कवर होगा, ठीक है। सो आपको मैं करवाती हूँ तो वो थोड़ा थोड़ा करवाती हूँ, सो दैट यू कैन एक्चुअली हैव द आइडिया ऑफ व्हाट इम्पोर्टेंट इज लाइंग इन ईच चैप्टर। हर चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ कि इसको चैप्टर को इस तरह से, सो दैट व्हेनेवर यू विल ओपन दैट चैप्टर तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। बट 100% आपके चैप्टर्स कवर नहीं हो पाते, जैसे DNHE1 के भी पूरे नहीं हुए हैं, DNHE2 तक चले गए। अब नाउ these days DNHE2 is going on, so I have to shift it to DNHE3 too, and then I have to shift it to DNHE4। बट क्या है कि जितना मुझसे होता है मैं वो करवाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्रायोरिटी में, और जो कोई चैप्टर मुझसे रह गया है आप बाद में पूछ सकती हैं मुझसे, प्रॉब्लम व्हाट्सएप पे पूछ सकती हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो छोड़ ही देने हैं, नो दिस इज नॉट। तो व्हाटएवर आई एम टीचिंग यू, आपको पढ़ना है, अगले वाले भी पढ़ने हैं, इक्वली इम्पोर्टेंट हैं सारे। ओके, Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. हाँ जी बोलिए। मैम एक तो DNHE3 और 4 की बुक्स अभी तक अवेलेबल नहीं हुई। वो और तो टेक्निकली आ जाएंगी, कोई बात नहीं, ये काफी लोगों की लेट आती हैं, अभी आपका टाइम है, आ जाएंगी।
मैम मेरे को थीसिस के बारे में थोड़ा हाँ जी, थीसिस के बारे में आप वो बोल रहे थे। DNHE4 की क्लासेस जब होंगी देन विल बी गोइंग टू डिस्कस। ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। वैसे तो मुझे ये है कि आप जल्दी कर लो बिकॉज थीसिस टेक्स टाइम। हाँ जी थीसिस ही मैम, एक ऐसा इसीलिए। है व्हिच टेक्स टाइम एक्चुअली। ठीक है, तो आपको जल्दी शुरू करवाना भी है मैंने। बस अब तो DNHE2 है, इसके बाद DNHE3 की क्लासेस हैं, उसके बाद और 4 ही है। 4 में हम डिस्कस करते रहेंगे आपके थीसिस के टाइटल्स एंड ऑल, ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल, वो सबका इंडिविजुअल होगा, तो ओके उसमें मैम, ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। एंड आई रियली वांट कि बुक्स तो देख के आप पढ़ लेते हो, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स पूछ लोगे, बट थीसिस में इंडिविजुअल अटेंशन देनी पड़ेगी मुझे, और देनी यस भी मैम, है क्योंकि आपने अकेले अकेले करना है। फाइंडिंग होती है वो, एक्चुअली आपको काम भी करना है, क्वेश्चनर सेट करने हैं, वो एक अलग चीज है। सो आई विल बी टीचिंग यू, नो प्रॉब्लम्स, डरो मत, करवा देना है सबका। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। ठीक है हेलो जी। मैम। हाँ जी, मैम नमस्कार, मैं मनीष हूँ। आ, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ मैम। DL में वो प्रोटीन आपने बताया वो क्या है मैम? क्या क्या? लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन्स लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। लिपोप्रोटीन्स लिपिड्स के साथ प्रोटीन्स अटैच्ड होते हैं। ये 3-4 कैटेगरीज होते हैं, जैसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इस तरह के होते हैं, ब्लड में होते हैं। हाँ जी, थैंक यू। Okay ji, so it's time, and keep your questions for tomorrow. I'll be meeting you at the same time. Hopefully we'll join on time. आज 10 मिनट वेस्ट हो गए, so it's okay, no problem. Sometimes internet की problem आ जाती है. So nice talking to you. Keep reading and keep asking questions. मैम मैं कुछ Thank you so पूछना चाहता much. हूँ मैम। हाँ जी, एक्सक्यूज मी मनीष मैम। कुमार जी, या हाँ मैम, मैं आज बोलिए। पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ। एक्चुअल में क्या था, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम आ गई थी फैमिली में, कुछ थोड़ा सा रहा, तो मैं आज पहली बार क्लास ज्वाइन करी है मैंने, और मैं मेल अपना चेक नहीं कर पाया था उस समय। तो क्या हमें असाइनमेंट वगैरह के बारे में कुछ बता पाएंगे मैम कि कैसे वो जमा वगैरह करने होते हैं या कैसे रहेगा वो? हाँ जी, आपको सर ऑनलाइन जाना होता है, वहीं पे असाइनमेंट्स हैं, वो आपको डाउनलोड करनी होती है। एक तरह के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं DNHE1, 2 एंड 3 की, एंड देन उसको डाउनलोड कर लो। एक क्वेश्चन पेपर है, एंड लूज शीट्स लेके A4 या लाइंस वाली कोई भी, उसके ऊपर वो हैंड रिटन बनानी होती है। और जब जैसे DNHE1 बनाएंगे, उसके ऊपर वो क्वेश्चंस पेपर लगाएंगे, उसके ऊपर आप एनरोलमेंट का नंबर लगाएंगे, तो आपको सबमिट करनी है। मेरा ख्याल आप लोगों की ऑनलाइन ही सबमिट होगी, बट होती है हैंड रिटन ही है वो। आपको पिक्चर्स क्लिक करके हैंडमेड PDF रिटर्न करनी है ना? बनाएंगे टू अपलोड, इसी तरह से हैंड रिटन वाली जो है उसमें अपलोड करनी है जी। हैंड रिटन वाली अपलोड करनी है ना मैम? हैंड रिटन है, पिक्चर्स क्लिक करके PDF तो बनाएंगे मैम तभी इसमें आप। जैसे अभी तक मैंने एक भी असाइनमेंट नहीं करा है अपलोड, तो हम ये 30 कब तक कर सितंबर सकते तक हैं? करवा दीजिएगा। 30 सितंबर भी एक लास्ट डेट आएगी अभी आपकी, उससे ओके, करवा दीजिए। बट ठीक है मैम। अब कीप ऑन चेकिंग द इग्नो साइट प्लीज। ओके मैम। ओके, मैम रेगुलर इन एग्जाम टच रहिए, एग्जाम उनके एग्जाम कब होंगे नोटिफिकेशन मैम इसके? दिसंबर में। दिसंबर में होंगे? हाँ, आपको अक्टूबर से ही आपको इन टच रहना, मतलब उससे पहले आप हमेशा ही इग्नो के स्टूडेंट्स हैं, तो इग्नो की साइट पे इन टच रहिए। तब वहाँ पे एग्जामिनेशन भी फॉर्म्स निकलेंगे, तब आपको फिल करने पड़ेंगे, एंड देन यू हैव टू। आपको थीसिस भी ओके मैम। सबमिट करना है, अगर आपको 1 ही साल का डिप्लोमा 1 ही साल में करना है तो। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई एम जस्ट क्लोजिंग द क्लास, थैंक यू, ओके। Thank you, ma'am. हेलो। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी हेल्प कर पाए कि भाई मैंने अभी तक कुछ नहीं किया था, तो कोई और जो जिसने कुछ कर लिया हो असाइनमेंट वगैरह का, थोड़ा मुझे गाइड करेगा क्या कोई?